नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रदीप जी और मैं हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी, what a wonderful meeting, public meeting that Mr. Narendra Modi had. And as you were saying, the Australian Prime Minister was saying that You're the boss, you're the boss. we've seen such a gathering after the boss. Yes. That is Bruce Springsteen. Only Bruce Springsteen could gather a crowd as big as this, and Modi's crowd was bigger. Bigger. Which is fantastic. People are paid to come to the stadium. Yes, And it's they've packed. bought tickets. And That's it's why he's the packed. rock star. He said, you're the boss, you're the actual boss. The real rock star. We've got a rock star for a prime minister, and we should be proud of him. I tell you what, let's take a look at what took place over there. जरा दिखाएंगे जरा जो नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग थी जो ऑस्ट्रेलिया में. Can we please take a look? Oh dear, this is going to take some time. Is it going to take some time? Can we have it on? Yeah, there is. Audio please. और करी इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत। That was lovely. That was absolutely lovely. I wish these guys, our chaps could have played the entire thing. I don't know why they love cutting off the Prime Minister right in the middle. We have a Congress spy in our midst. Yes. But that was really fantastic. Absolutely fantastic. Loved seeing it. And did you see the stadium? My God, it was absolutely full. I tell you what, I think we have Mr. Rajiv Pandey of the BJP with us. Rajiv Pandey ji, namaskar. नमस्कार, वंदे मातरम। Vande Mataram, sir. Vande Mataram. Vande Mataram. First of all, congratulations to you. I must congratulate you. I must congratulate you for predicting absolutely accurately as to what the Supreme Court of India would do in the case of those 16 MLAs. You were brilliant. Bloody brilliant. Absolutely accurate. Mr. Rajiv Pandey, you were perfect. I think Pradeep ji and me predicted about the Kerala story also. I told you that Yes. Supreme Court will slap this Kolkata, West Bengal government. Yes. I think just one day before I was with you, Yes. and I said that this will happen. And as far as
जो ये महाराष्ट्र स्टोरी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं जी। सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के दौरान वहां था। जी कम से कम 60% जो केस जब हियरिंग चल रही थी, जी तो जब भी मेरे पास अपना काम नहीं होता था तो मैं उस कोर्ट रूम में जाकर के सुनता था कि क्या आर्गुमेंट्स है दोनों साइड के, जजेस क्या सोच रहे हैं, उनके क्वेश्चंस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने वो बताने की कोशिश की थी। बट यू आर रियली एक्यूरेट, कंग्रेचुलेशंस अगेन। और साहब देखिए, धन्यवाद। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, इतना बड़ा क्राउड हमने देखा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के रॉक कॉन्सर्ट में, और ये क्राउड उससे भी ज्यादा है, एंड इट्स अ पेड क्राउड। और तो और छोड़िए, लोगों ने टिकट खरीदी है भाई, लोगों को वहां लाया नहीं गया है। पीपल हैव बॉट टिकट्स एंड गॉन देयर। Overbooked. दिस इज Packed, overbooked. and there was more people outside than inside, which was fantastic, absolutely fantastic. आपको लगता नहीं है, मतलब हर एक का सीना चौड़ा नहीं हो जाता ये देख करके कि हमारे देश के बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी देखिए, को किस प्रकार उनका स्वागत हो रहा है, किस प्रकार उनको समर्थन मिल रहा है। सर प्लीज। देखिए, ऐसा है कि मैं लाइव देख रहा था, पहले मैं प्रधानमंत्री जी का मैंने पूरा भाषण सुना, इसके जी। बाद जो वहाँ के ऑस्ट्रेलियन जो पीएम है उन्होंने कहा कि यू आर द बॉस, वो मैंने लाइव सुना। इसका पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, हर भारतीय के लिए एक जमाने में जब बाहर से जब कोई व्यक्ति आता था हिंदुस्तान, तो उसको कहते थे स्नेक चार्मर का कंट्री है ये। जी वो बीन बजाते हुए नेहरू जी दिखाते थे, ये हमारे यहाँ बीन बजाते हैं। जी आज स्थिति कहाँ है, हम कहाँ हैं? देखिए, बीन भी हम बजाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम भी हमें आता है। लेकिन आज हम कहाँ पहुंच गए? अगर आप देखिए जिस तरीके से देश, क्योंकि देश की जो ताकत है वो 3-4 चीजों से, आपका टेक्नोलॉजी में हम कहाँ गए। अगर आप याद करिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भारत आजाद हुआ जी तो हमारे पास कोई फाइटर प्लेन बनाने की कोई क्षमता थी नहीं। जी नहीं। तो उस समय जो जर्मनी से जो नाजी इधर उधर भाग रहे थे, उसमें से कुछ को बुलाए थे नेहरू जी कि आप हमारे यहाँ भी बनाओ, हम फाइटर प्लेन खुद बनाना चाहते, नहीं बना पाए हम, हमारी रिसोर्सेज की कमी थी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करता हूं। आज हम कहा है कि हमारे फाइटर प्लेन में 4.5 जनरेशन का जो फाइटर प्लेन है वो भारत बना रहा है। जी आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के किसी भी कंट्री से compete कर सकते हैं। जी दुनिया में अमेरिका और रसिया, जब क्रायोजेनिक इंजन को, जब माननीय नरसिम्हा राव जी ने उस समय रसिया से लेना, रसिया टूट गया था, अमेरिका ने दबाव बना के हमको नहीं दिया, तो हमारे देश के सपूतों ने खुद से बना लिया। और आज हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में और जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी में हम जी। दुनिया के किसी भी कंट्री के बराबर है। सर थोड़े इसके- से आगे हैं। मैं वही कह रहा हूं। इसके बाद आप देखिए कि क्या हमारे यहाँ होता था, जो बचा खुचा वैक्सीन होता था तो एक ये लोग मांगते थे हमें दे दो, दे दाता के नाम। लेकिन जी। आज क्या हुआ? आज जब हमने वैक्सीन बनाया तो दुनिया में जब अमेरिकन वैक्सीन बन रही थी, उसी दौरान हमारे यहाँ भी वैक्सीन बनी। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लोगों का मानना है कि अमेरिकन वैक्सीन से हमारा वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव था। चाइनीज की जी। तो कोई बात ही नहीं, उनका तो वैक्सीन जी। में कोई मतलब ही नहीं था। जी मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जब आई 2014 से, तो हर जगह कोशिश हो रही है कि हम क्वाड में जिस तरीके से आप बैठते हैं, दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है अमेरिका, जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 2 चाइना है, उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद इंडिया 5वें नंबर की, और ऑस्ट्रेलिया। हम लोग 4 कंट्री जो है, जो टॉप 4 कंट्री, वो क्वाड बनाता है कि भाई जापान टॉप 5 में से 3 अर्थव्यवस्था, जापान, भारत और अमेरिका एक तरफ है, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जुड़ता है और एक क्वाड बनता है जी कि कैसे रूल बेस्ड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलेगा। तो अगर आप पूरे तरीके से देखिए, जो आज कश्मीर में, एक बात और मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, जिस तरीके से भी कश्मीर में चल रहा है G20 का, दैट्स राइट। पूरी दुनिया, कांग्रेस के टाइम में हम यही साबित करने में लगे थे कि ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो बनाया, उसके जो आर्टिकल 1 में जो लिस्ट है हमारे स्टेट्स का, उसमें जम्मू एंड कश्मीर है। और जिस दिन राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया, उसी दिन इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। लेकिन इन लोगों ने, हमारे जो कांग्रेस के जो साथी, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर वाली और महात्मा गांधी वाली कांग्रेस अलग है, इंदिरा और इटालियन कांग्रेस अलग है, उसको आप छोड़ दीजिए। इन लोगों ने उसको डिस्प्यूटेड एरिया, आज देखिए पूरे दुनिया के लोग वहां आ गए, कोई बचा क्या? पूरी दुनिया ने मान लिया वहां आकर के, एकदम क्या शांति है, क्या लोग रात में घूम रहे हैं, लोग गाना बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। एक कश्मीरी का वीडियो मैंने आज ट्वीट किया कि कितने वो खुश हैं। तो देखिए, देश में काम हो रहा है, और हमारे विपक्षी है वो हमारे काम से इतने घबरा गए हैं कि अब हर जगह यूनिटी बनाने की कोशिश हो रही है।
तो ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि 24 में डायरेक्ट बीजेपी यानी एनडीए वर्सेस रेस्ट का लड़ाई होगा। और ये हमने जो काम किया है, हमने जो दुनिया में जो भारत की छवि बनी है, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी और लोगों से आशीर्वाद मांगेगी। और सर वही नहीं है आज की तारीख में, अगर आप मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें आज की तारीख में, आई थिंक बाय December this year alone, in all likelihood the coastal road will be inaugurated. The Trans Harbour Link is going to be inaugurated very shortly. नवंबर। Yes, that's right. और उसके अलावा there are about another 8 other projects, mega projects, which are going to be functional in December 23 or January 24, which means just in Mumbai and Maharashtra alone, the kind of infrastructure that we have managed to see develop is absolutely remarkable. I mean, this is amazing what has happened over here. You know, and then don't forget, you'll have Vande metro trains for the local trains, which is fantastic. Absolutely fantastic. अब बिल्कुल आपने जो मुंबई का जो 3 सबसे मेगा प्रोजेक्ट मैं मानता हूं, मुंबई कोस्टल रोड और जो ट्रांस हार्बर लिंक है, जिससे कि साउथ मुंबई से मतलब हमारे लिए और नाम्बियार साहब के लिए हाईकोर्ट से निकलिए और 20 मिनट में 25 मिनट में पनवेल पहुंचिए जी। हमारे लिए तो वो हम ऐसे देखते हैं क्योंकि आप निकलिए 25 मिनट में पनवेल, 1.5-2 घंटे में पुणे की कोर्ट के भी मैटर ले सकते हैं नाम्बियार साहब, और मैं भी ले सकता हूँ। तो ये परिस्थिति है। और ये इन प्रोजेक्ट्स को अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो ये कब से प्रलंबित है, ये कब से लंबित है, कब से इसकी बात हो रही है। कोस्टल रोड अनदर, मतलब आप अगर कोस्टल रोड से है, अगर उसमें आप लगाते भी हैं, टोल भी लगाते हैं, तो जितने पेट्रोल डीजल और एयर फेयर आप देते थे रास्ते में खड़े होकर के, उससे कम में आप बोरीवली पहुंच सकते हैं। आप आज आप अगर वर्सोवा जा रहे हैं तो आप पूरा घूम करके जाते हैं, आप बैंड्रा से वर्सोवा 5 मिनट में पहुंच सकते हैं जी। तो देखिए ये सारा डेवलपमेंट चल रहा है। और ये सरकार में एक बात बताना चाहता हूं बजाज साहब की, इस सरकार की जो नीति और नियत दोनों है कि कैसे हम देश को आगे ले जाएं जी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो। और ये नियत जो है ना वो दिख रहा है, लेकिन हमारे ऊपर हमले भी ज्यादा होंगे क्योंकि बहुत लोगों की दुकानदारी बंद होने वाली है, परमानेंटली दुकानदारी बंद हो जाएगी। सर अभी तो आपने G20 की बात करी, एक तरफ महबूबा मुफ्ती जी, एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ना आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ही इज यूजुअली, चलिए ठीक है कभी कभी बोल देते हैं इधर उधर, बट इन टर्म्स ऑफ हिज ओवरऑल अटरेंसेस ही इज यूजुअली ऑब्जेक्टिव। अब मेरा ये कहना है, आप सबको दिख रहा है कि G20 से वहां पर क्या हुआ है, आप सबको दिख रहा है कि आर्टिकल 370 के रिपील के बाद वहां पर क्या हुआ है। अरे यार और तो और छोड़िए, जो SC/ST रिजर्वेशन था पूरे देश में जो लागू होता था, वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था। अरे दिस इज सो शॉकिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। सर बताएं प्लीज। बजाज साहब, आर्टिकल 370 और 35A पर मैंने काम किया जी। देश में एक बहुत बड़ा संगठन है जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र जी। पहला पिटीशन आर्टिकल 35 कैपिटल A के खिलाफ मैंने डाला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वेस्ट पाक रिफ्यूजी के लिए, जो 2019 में खत्म हो गया, इसलिए हमारा सारा पिटीशन अभी भी वैसे अलाइव है वो जी। मैं बताता हूं आपको, जम्मू कश्मीर की स्थिति जो इन्होंने की थी, वहां पर एक PRC था, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जी। अगर आपको PRC नहीं है तो आप वहां के स्टेट गवर्नमेंट में आपको जॉब नहीं मिल सकती जी। आप लोकसभा में तो वोट डाल सकते हैं लेकिन विधानसभा में नहीं डाल सकते, आप कॉर्पोरेशन में नहीं डाल सकते, कॉर्पोरेशन में नहीं। लेकिन ये सब बातें तो सबको पता है। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं जी। वहां एक 2 कम्युनिटी थी, एक कम्युनिटी थी वाल्मीकि समाज की जो शेड्यूल कास्ट जी, और एक गोरखा जी। इन लोगों ने, शेख अब्दुल्ला ने कुछ लोगों को कहा कि चलो तुम आ जाओ हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी के रूप में। वाल्मीकि समाज के लोग पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से। तो इन्होंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप तो हमको सरकारी जॉब दोगे नहीं। तो इन्होंने बोला नहीं, तुमको हम PRC दे देंगे, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। और उनके PRC पे उन्होंने क्या लिखा, PRC फॉर सफाई कर्मचारी। तो एक दलित का बेटा, एक दलित की लड़की अगर MA PhD भी कर चुकी है तो उसको सफाई कर्मचारी ही बनाना था। ये इस प्रकार का इस्लामिक रूल टाइप कि आप इसी के लिए बने हो, ये जम्मू कश्मीर में था, जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने उस रूल को डस्टबिन में फेंक दिया। हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहां पर शेख अब्दुल्ला की जो बहू है, फारूक अब्दुल्ला की पत्नी, वो ब्रिटिशर है,
That's right. उसको आते ही सारे राइट मिल गए, उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया। जी। लेकिन अगर कोई वहां की लड़की बाहर किसी से शादी, I think we'll have to go back to Mr. Rajiv Pandey. I think we may have lost him. Can we get back, please? Can we try and get him back, because what he was saying was most interesting. We seem to have lost Mr. Rajiv Pandey. Can we get him back, please? I think Pradeep ji, what he was saying was most interesting and very shameful. Exactly. And Very, this very, is very shameful. only for Safai Kamgar. I mean, it shows upon what the that Indian constitution work there, but no constitution works there. That's And right. I said it is like Islamic law that nobody else can do it. Anybody coming from out will never. Oh, Safai Kamgar ही सफाई रहेगा। कामगार सफाई कामगारी Yes, रहेगा। रहेगा, जैसा पाकिस्तान में है। बिल्कुल सर। पाकिस्तान में है ऐसा सर, वहाँ पे लोअर कास्ट क्रिश्चियन, And nobody talks about ये it. एडवर्टाइजमेंट होती है। The greatest, people who talk about equality and the right to the poor and downtrodden, they don't even want to talk on these subjects because it doesn't. So if Mr. Modi, I think we've got Mr. Pandey back. Pandey बिल्कुल साहब, आप जरा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं सर, एक बार फिर बजाज बताइए। साहब, Please मैं बताएं। देश की जनता के लिए बताना जरूरी है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में 1947 से हम सब बराबर हो गए, जी, न कोई जाति के आधार पर न रीजन के आधार पर, हम सब बराबर हैं। That's right. एक वोट सबको मिला। लेकिन उसी देश में ये इन लोगों ने 5 अगस्त 2019 तक जो दलित थे उनके साथ तीसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा। ये शेख अब्दुल्ला और ये जो 1-2-3 परिवार है वहां के, और जो पार्टी सत्ता में केंद्र में थी, इतना बड़ा काम किया। और मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। जी बताएं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्यों समर्थन किया आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और 35A के एब्रोगेशन को? हमारे संगठन ने जाके उनको बताया कि दलितों पर किस प्रकार का अत्याचार होता है। बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए इसको नहीं रखना चाहते थे। अगर आप जाके देखेंगे संविधान में, हमारे वकील साहब बैठे हैं, ये एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में आया था। टेम्पररी प्रोविजन का मतलब होता है खत्म होगा। Quite right, sir. और इस प्रकार से, और ये कोई भी आप अच्छा काम कर लीजिए, कुछ देश में कांग्रेस पार्टी की एक अपनी प्रॉब्लम है। देखिए, बार बार मैं इंदिरा कांग्रेस बोलूंगा या इटालियन कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस बोलते ही ना, इनके पास एक इतिहास है। राजेंद्र प्रसाद जी भी आ जाते हैं उसमें, जी, उसमें तिलक जी आ जाते हैं, गांधी जी आ जाते हैं। जी। तो ये जो इंदिरा कांग्रेस है ना, ये देश के विरोध में जो भी काम करना है आप इनसे करवाइए, ये चलेगा इनका। अभी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से एक किताब को फाड़ा गया कर्नाटक में। जब चुनाव आप जीत गए, कोई बात नहीं, चुनाव जीत गए, हमारा वोट तो घटा नहीं। तो एक महान जिनके अब दिन पर पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है, आप उनकी किताब फाड़ते रहो। तुम्हारे बाप दादाओं ने फाड़ते फाड़ते कुछ नहीं हुआ, सावरकर जी और गांव गांव तक पहुंच गए। तो मेरा ये कहना है, ये राजनीति से आगे जाते हैं। ये राजनीति से इन्होंने सेफ्रॉन टेरर कराया। ये कोई भी अच्छी आज जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इसको पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आज जो मोदी जी को सम्मान जो मिल रहा है, चाहे वो बाइडेन ने जो कहा या ऑस्ट्रेलिया में जो मिल रहा है सम्मान, ये मेरा और आपका सम्मान भी है भाई जी। ये मेरा और आपका सम्मान है ना। हमारा प्रधानमंत्री है वो, हमारे प्रतिनिधि है वो, हमारे बॉस है। पांडे जी, कांग्रेस का कहना है कि दिस इज सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। बोले कि मोदी जी इज डूइंग सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, कि मोदी जी एक ही है, बाकी कोई कुछ नहीं है। बोले इंडिया वाज स्ट्रांग। बोले G7 समिट के बाद कर G20, एज यू सेड G20, फारूक अब्दुल्ला ग्रेटेस्ट वॉइस फॉर हिज ऑब्जेक्शन। बोले आपने पूरे अर्थव्यवस्था का तहस नहस कर दिया G20 के माध्यम से। इस गली गली में बोलते सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, आपने पूरे आर्मी और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को काम पे लगा दिया है। एंड मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश करना की एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आप दूर भाग रहे हो। उनको कोई, जैसे आपने कहा कि जो बाइडेन गले मिल रहे हैं, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर गले मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक गले मिल रहे हैं। बोले इससे कोई मतलब नहीं। बोले कि लोकल इश्यूज आप उठाइए। राहुल गांधी ट्रक चला रहे हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा इशू है कि आज ट्रक चला के उन्होंने यहां से चंडीगढ़ दिल्ली चला गए और ट्रकर्स के प्रॉब्लम को समझा। तो दे आर टोटली, बोले कि दिस इज सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, नथिंग। और इंटरनेशनल रिलेशंस क्या बोलते, इंटरनेशनल कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, उनका कहना है कि बॉर्डर डिस्प्यूट में सच्चाई बताइए आप, इंडो चाइना बॉर्डर में। तो यू सॉ इट, हाउ व्हाट मल्लिकार्जुन, बोलिए। देखिए, जहां तक है कि फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला के जमाने में ही जब उनकी सरकार थी, या वो बहुत बड़े नेता थे वहां, जब उन्होंने इस्तीफा देके भाग गए लंदन, वो
तब हिंदुओं को चुन चुन करके कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो उनकी तो बेशर्म है वो, उनको तो शर्म आनी चाहिए, उनको तो शर्म आनी चाहिए बोलने। ये हमारा पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो हमारा मेन बॉर्डर है, वहां तो सुरक्षा रहेगा, गली गली में रहेगा। अगर सुरक्षा बलों से दिक्कत है तो यहाँ से निकलो, फिर हमारे घर के आगे सुरक्षा बल है तो मैं खुश रहूंगा ना कि हमारे घर में चोरी नहीं होगी। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम चोर हो क्या कि सुरक्षा बल से डरते हो? अगर हमारे घर के बाहर आप सीआरपीएफ लगवा दीजिए, एयरपोर्ट पे सीआरपीएफ लगी रहती है, सीआईएसएफ लगी रहती है, तो हमें तो अच्छा लगता है कि देखो हमारा एक बंदा है, ठीक से चेकिंग हो रहा है, प्लेन सेफ चलेगा। तो मैं उस विषय, अब जो आपने एक रियल विषय की बात की, मैं उस पर आता हूँ। इनका कहना है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है। मुझे एक बात बताइए, 1971 में बजाज साहब इसको 1971 में जब भारत और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और दो टुकड़े हो गए, उस समय यूएन में कितने वोट हमको मिले थे? 6 या 7 वोट, और केवल रशियन वीटो के कारण हमारे ऊपर सैंक्शन लगने से बचा। जी। आज क्या परिस्थिति है? 5 लोग हैं। पहले तो हम मानते नहीं कि ये जो वीटो वाला जो पावर है, कहते हैं हमें भी दो या सबका हटाओ। आज 5 वीटो कंट्री है, आप हर विषय पर 4 वीटो वाले जो कंट्री है आपके समर्थन में है। जी। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, बिल्कुल दुरुस्त। अगर एक विषय पर आप बता दीजिए। ये लोग बात करेंगे, कांग्रेसी बात करेंगे, इनको कुछ। और मैं आता हूं बात ट्रेड, हमारे बॉर्डर पे चाइना से चल रहा है और वो चलेगा। देखिए वो इसलिए चलेगा क्योंकि इन्होंने खुद सलामी स्लाइसिंग करा के, पहले तो इन्होंने 6200 वर्ग मील इन्होंने, या 3200 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग मील इन्होंने 62 में खो दिया। इसका सलामी स्लाइसिंग इन्होंने बॉर्डर पे नहीं लेके गए। आज हम आई टू आई खड़े हैं। तुम्हारे 100 लोग लाए, हमारे 100 जवान जाके खड़े हो गए। तुमने 5 टैंक लाए, हम 5 टैंक लेकर के वहां चले गए। तुम एक एयरक्राफ्ट 5 फाइटर प्लेन लाए, उनके फाइटर प्लेन में उनकी ताकत नहीं है। आज आप देख लीजिए कि चाइना से और पाकिस्तान, आज पूरी दुनिया में चाइना और पाकिस्तान अलग थलग है कि नहीं? आप बताइए मुझे। भारत की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इवन इस परेशानी में भी चाइना के साथ भी हमने बिजनेस इफेक्ट नहीं होने दिया। न वो बिजनेस इफेक्ट कर रहे हैं, न हम कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पे 1 इंच भारत पीछे नहीं हटा। ये पहले वाला भारत नहीं है कि चाइना गिदड़ भभकी देगा और भारत पीछे हट जाएगा। मुझे आप बताइए, ये चल रहा है स्टैंड ऑफ, पिछले 2 साल से ऊपर हो गया। और पूरी दुनिया नहीं, वो तो पहले, इस बार जब गलवान वाला जो बात कर रहा हूं, और ये जो आप बात कर रहे हैं, गलवान वाला तो हाँ, नहीं, मैं गलवान में भी वो पीछे गए। और ये जो 2019-20 से जो शुरू हुआ है, आज चल रहा है। मेरा क्या कहना है, दुनिया के इतने थिंक टैंक है, क्या किसी थिंक टैंक ने कहा कि भारत ने कुछ कंसीड कर दिया है? अगर कह दे तो मान जाऊंगा मैं, क्योंकि आजकल देखिए सैटेलाइट का जमाना है। अगर कोई भी आदमी अपनी जगह से पीछे हटेगा तो पता चल जाएगा, पहली बात। और मैंने आपको दोनों बातें बताई। भारत की जो सामरिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, क्या उसमें सुधार नहीं दिख रहा है? कि अंधे को भी दिखेगा। मैं एक बात और, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जब भारत आजाद हुआ उस समय हम लोग उसके इसमें थे, ब्रिटेन के कैप्चर में, तब भी दुनिया की हम 13 नंबर की अर्थव्यवस्था थे। 13 नंबर, 13। इंदिरा जी ने इतना मेहनत किया और राजीव जी ने कि हम पहुंच करके 29 पे चले गए थे। मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है। और मैं आपको कह रहा हूं 3 साल के भीतर, आज क्या है 2023 चल रहा है, 4 साल के भीतर 2027 तक भारत, जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और हमें दुनिया के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश करनी है। इन सब क्षेत्रों में काम चल रहा है, लेकिन यह कहना है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है। सेल्फ ग्लोरी, दूसरे मतलब इनका यह कहना है कि वो वहां के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्लानिंग में आकर के इनको कह रहे हैं यू आर द बॉस। बाइडेन कह रहे हैं कि आपका मैं ऑटोग्राफ लेता हूं, इन्होंने कहवा लिया है। तो अगर प्रधानमंत्री जी का इतना प्रभाव है कि अमेरिकन राष्ट्रपति से कुछ कहवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। आप मुझे बताइए ना, आज क्या परिस्थिति है? चाइना आंख दिखा रहा था ताइवान को, इधर इंडिया को। कहां चाइना खुद स्टक है। पाकिस्तान की स्थिति आटे पे, मतलब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दूंगा। चाइना में आबादी का प्रॉब्लम है, 3 बच्चे हो गए फिर भी नहीं कोई आबादी बच्चे पैदा कर रहा है। चाइना, पाकिस्तान से किस चीज का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना होता है, इस पर रिसर्च कर लीजिएगा। ये हालत पाकिस्तान की कर दी मोदी जी ने कि क्या एक्सपोर्ट होता है? गधे, डोंकीज। नहीं, वो गधे डोंकी तो सबको पता है, वहां लड़कियां नहीं मिलती है जी। ये भी हर बार ये क्या करते हैं, correct. ये खरीदते हैं जी। ये मैं क्या कह रहा हूं, तो ये स्थिति में ला करके रख दिया एक भारत में। आज हर विषय पटल पर चाइना का एक पिट्ठू देश है, क्लाइंट स्टेट बोलते हैं डिप्लोमेसी में, पाकिस्तान। इस दोनों कंट्री के साथ छोड़कर किस कंट्री से भारत का जो रिलेशन है वो इंप्रूव हुआ कि नहीं, आप उसको टेस्ट कर लीजिए।
और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी कि नहीं, क्या हमने बिजनेस बढ़ाया कि नहीं, क्या हमने अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाई कि नहीं, इन सब विषयों पर हो देश देखता, क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं देश में, क्या नए आईआईएम खुले नहीं, नए आईआईटी नहीं खुले, नए एयरपोर्ट नहीं बने, नए एम्स नहीं बने। सिंपल बात है, टेस्ट करना बड़ा इजी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा वर्ग है और वो कर्नाटक में एक्सपोज हुआ है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अब हर जगह 50% से ऊपर वोट लाना पड़ेगा। भाजपा का वोट नहीं घटा कर्नाटक में, एक प्रकार का वर्ग है जो इस देश के खिलाफ काम कर रहा है, वो सब यूनाइट हो गए। यूपी में भी हुए थे वो, लेकिन यूपी में उसका काउंटर पोलराइजेशन हुआ और जिसके कारण से योगी जी फिर से 270 सीट के साथ तो आपके मुताबिक पूरे भारत में काउंटर पोलराइजेशन होगा? नहीं, मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 50% मत, जो हमारे अमित शाह जी ने कहा था, हमको उस पर काम करना That पड़ेगा। means 350 plus in 2024. जी, 50% वोट, क्योंकि आप देख लीजिए 36% But if you वोट get हमारा 50%, no, hang on a minute. If you get 50%, that means you are looking at around 400 seats. नहीं, इन वो लोग जो सब- भी सीट देखिए, उसका मैं बजाज साहब, जो अगर आप कर्नाटक का चुनाव का देख लीजिए, जी, मैं जब से राजनीति हूं, मैं अपना जो मैं कोई आपके चैनल पे आके झूठ, जो मेरी समझ होती है वही बात मैं करूंगा। तो मेरे समझ से किसी भी तरीके से कर्नाटक में भाजपा सेम वोट रिगेन कर रही थी, लेकिन कोई जी। नहीं जान सकता था कि 9 से 10% वोट इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा। जी, जो हुआ, ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा का लीड बहुत बड़ी, भाजपा को वोट परसेंटेज में but the नुकसान same नहीं thing हुआ। might happen all over the country, sir. Because Yes, that's why- because lots of analysts say that the Muslim vote shifted from the JDS and it shifted straight to the Congress. you are absolutely correct. टोटल जो मुस्लिम वोट था, ये और क्या किया इन्होंने, मुस्लिम वोट उधर हो गए, जो हिंदू वोट थे वो डीके शिव कुमार, ये कुमारस्वामी साहब के साथ रहे, ये शिफ्ट कर गए भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा ना, मैं इस विषय पर हिंदू मुस्लिम छोड़िए, 50% लोगों का मत लाने के लिए भाजपा को काम करना है और हम उस काम को करेंगे। पांडे जी, बट व्हाट बजाज साहब इज सेइंग इज परफेक्टली राइट। 14 to 20%, जैसे यूपी में 20% मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, वो सच्चाई को मान के चलना पड़ेगा, और बाकी एरियाज 14 to 20%। ये मुसलमान वोट आज के तरफ से बहुत कैलकुलेटेड तरीके से वोट करेंगे और वही पार्टी को वोट करेंगे जो बीजेपी को मात दे सकती है। तो दैट इज फॉर श्योर, दैट इज गोइंग टू हैपन। यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज, एंड इफ यू आर सेइंग फ्रॉम 38% to 12% इंक्रीज 50% तक आपको ले जाना है, तो you will have to get something out of the bag, because 38 to 50% is a huge margin, and considering the polarization against you, considering just प्रकाश, आज भी केजरीवाल जी सबसे मिल रहे हैं, उद्धव जी से कल मिलने वाले, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन जी सब करके सबसे मिल रहा है। There seems to be one thing, that polarization of anti-BJP जबरदस्त तरीके से एक ताल हो रहा है। You got a tough challenge, वो बोल रहा हूँ। It's very tough, पांडे जी, कैसे करोगे? नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चूंकि मोदी जी का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि चोरों के खिलाफ जो हम एक्शन ले रहे हैं, जिससे पूरा विपक्ष एक हो जाएगा, तो देश देखना चाहता है कि क्या ये सारे विपक्षी लोग मिलकर के और भाजपा के साथ चुनाव होगा। देखिए, दो बातें हैं, मैं एक बात कह रहा हूं कि कैसे करेंगे, हम तो काम करके ही करेंगे। और आप ये देखिए, कई स्टेट में, कम से कम 7 से 8 स्टेट है जहां लोकसभा में 50% के ऊपर भाजपा है। अगर आपको मैं स्टेट का नाम भी गिरा सकता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जी, हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा में तो खैर फर्स्ट टाइम स्टेट में भी हम 50% से ऊपर थे। और अगर आप एनडीए, क्योंकि हम एनडीए करके लड़े हैं, तो एनडीए करके जब हम लड़े थे तो करीब ये 42-43% वोट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, भाजपा का वोट आपने सही कहा। लेकिन एनडीए जो हम, जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी को वोट मिला, नीतीश कुमार जी को अपने दम पे तो 2 सीट नहीं मिला था 2014 में, याद होगा आपको। अपने दम पे उनको कोई सीट नहीं मिलता है। लोकसभा में 2014 में अकेले लड़े थे 2 सीट पे, ज्यादातर सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो वहां भी वोट मिला। तो मुझे कहना, मैंने कहा ये भाजपा का, जो अमित शाह जी ने कहा था कि हमको हर स्टेट में 50% की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे खिलाफ एक प्रकार का जो वर्ग है वो 100% हमारे खिलाफ काम करेगा। और यहाँ पर राजीव पांडे जी, एक और चीज जो है, दिस रियली इज माय फाइनल क्वेश्चन टू यू। आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। यू मे नॉट लाइक इट, आई डोंट लाइक आस्किंग दिस आइदर, because this is a very irresponsible rumor and analysis which is being spread all over the place. ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार 2019 में
पुलवामा के बाद बालाकोट किया गया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई एक्शन लेने वाली है। इसमें कोई सच्चाई है सर? बजाज साहब, पहले मैं एक बात बता दूं, जो लोग भी पुलवामा को और एयर स्ट्राइक को चुनाव से जोड़ रहे हैं वो देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। देखिए, सत्यपाल मलिक ने इतनी गंदी बातें की, लेकिन उसने भी क्या कहा कि इस पुलवामा अटैक वॉज ए हैंडीवर्क ऑफ पाकिस्तान। जी, वो अभी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने गिरने के बाद भी उन्होंने इसके लिए किसी को, ये कुछ लोग हैं जो वोट बैंक के लिए सब कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, अभी G20 का समिट चल रहा है। अगर अभी पाकिस्तान ने कोई गड़बड़ी की तो पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। भारत के, क्योंकि देखिए that even the Pakistanis realize. यस, मैं क्या कह रहा हूं कि आज भारत अपनी पूरी ताकत लगा करके जम्मू कश्मीर में पूरी दुनिया से हम कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, देखिए कितनी खूबसूरती है। ये कश्यप ऋषि का कश्मीर है, ये आतताइयों का कश्मीर नहीं है, ये अभिनव गुप्त का कश्मीर है। जो शैव दर्शन, अभिनव गुप्त 1000 साल पहले पैदा हुए, जी, जिन्होंने नाटक, ये कोई ये जिहादियों का और आतंकवादियों का कश्मीर थोड़ी है, ये अभिनव गुप्त का कश्मीर है। already lots of companies from the United Arab Emirates मैं वही कह रहा they've हूं। already come in. Yes. नहीं, देख बात जान लीजिए, यूनाइटेड यूएई के लोग या सऊदी के लोगों को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ के जो हमारे यहाँ कहावत है कि नया जो होता है ना वो बहुत दिखाता है अपने आप को, वो रियल वाले हैं, नकली वाले ज्यादा दिखाते। मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपने जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करके पूछा था, तो अगर कोई ऐसी घटना होती है तो भारत सरकार, ये पिछली वाली सरकार नहीं है कि मुंबई अटैक कर दो, 400 लोगों को मार दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उस समय के एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा है वो आपको याद होगा कि हम तैयार थे। मालूम है। एक दूसरी बात, जहां तक है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर मुझे कुछ कहना है, आपने पूछा तो उसका जवाब ले लीजिए। जी, देखिए, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और एक रिजोल्यूशन पास हुआ है जी, हुआ। कि भारत के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग कश्मीर नहीं बोलते, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हम पाक ऑक्युपाइड लद्दाख बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा हिस्सा है। लद्दाख का भी कैप्चर में है चाइना के, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू का भी तो बहुत बड़ा एरिया हमारा है, मीरपुर मुजफ्फराबाद तो जम्मू का है, कश्मीर तो छोटा सा है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ था, ये विल ऑफ द पीपल है कंट्री का। जो पार्लियामेंट कोई रिजोल्यूशन अगर पास करती है तो विल ऑफ द पीपल है। The तो second resolution, second. जी, The तो first, हमारा the first was passed in 1963, right? जी, बोलिए सर। जी, तो हमारा ये कहना है कि हम पूरे भारत के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि कब हम पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वापस लें। सरकार को जब लगेगा, आर्मी चीफ ने एक दिन कहा था कि आई थिंक इससे जो पहले वाले आर्मी चीफ की क्या करेंगे, उन्होंने बोला जब कहेंगे तो हम ले लेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जब पार्लियामेंट कहेगी हम ले लेंगे। मतलब पार्लियामेंट के नेतृत्व तो अभी मोदी जी के हाथ में। तो मेरा कहना है, इस पर किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। देखिए, लोगों को बीजेपी का मैनिफेस्टो ठीक से पढ़ना चाहिए। हमने आर्टिकल 370 के बारे में बहुत पहले से कहा था, कॉमन सिविल कोड के बारे में भी कहा है, उसको भी ठीक से याद रखें लोग। वो आएगा, आज आए कल आए। राम मंदिर का विषय था, जो जो चीज हमने कही, हमने मुस्लिम माता बहनों पर जो अत्याचार करते थे, ये ट्रिपल तलाक का, हमने उस पर भी कहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है हलाला का मसला, हो सकता है कि कल को वो भी, उस मुद्दे पर भी हम काम करें। ये जो क्या चल रहा है आपको पता ही है। मेरा ये कहना है कि जो हम अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं उस पर काम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी अगर काम कर रही है तो दैट मींस ईमानदार राजनीति है। बजाज साहब जी, right, thank you very much Mr. Rajiv Pandey for being, thank you, as usual, frank and fearless as usual and truthful, and once again congratulations to you for the manner in which you predicted how the Supreme Court would go in terms of the 16 MLAs who were set to be disqualified according to a lot of people. You're the only person who said is going back to the speaker. और पांडे That's जी, what you said. 2 लाइन में आगे भी बोलिए क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। ये ऐसे 16 एमएलए को लेके कैसे देखते हो आप? देखिए, ये अभी मैंने पेपर नहीं दे, मैंने कहा कि उस समय मैंने प्रेडिक्ट किया था क्योंकि मैं उस सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के दौरान था। जी, अभी ये पेपर मैंने देखा नहीं है। अब देखिए, ये 2 व्हिप का मसला है, किसने कितने बजे किया, अब ये विषय थोड़ा पेचीदा है जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट होता है ना, मैं 30 सेकंड में एक बात बता देना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट जो है ना, वो किसी लॉ का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फाइनल गुड की तरफ होता है। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें क्लियर है कि जब 2/3 लोग बागी हो जाते हैं तो 1/3 वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। अब वो 16 विधायक को मानते हैं या टोटल 40 को मानते हैं, तो ये देखना पड़ेगा।
तो इनका भी तो काउंटर है नाम्बियार साहब, उनके भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी एप्लीकेशन है। अब ये लोग कौन डिस्क्वालीफाई होंगे, अब ये तो स्पीकर का कार्यक्षेत्र है, स्पीकर साहब बताएंगे। Right. Thank you so much, Mr. Pandey. Thank you very much. थैंक यू, It's been a great pleasure, as always, talking to you. So nice of you, Thank sir. Namaskar, sir, और वंदे मातरम. नमस्कार, धन्यवाद। Right. So, Mr. Pandey didn't rule out the possibility of some action in Pakistan occupied Kashmir. हो सकता है कि पाकिस्तान occupied Kashmir में कोई action हो सकता है. They are moving towards that, sir, and where nationalism is concerned, the 4 pillars on which BJP is working, one is national security, nationalism, development. No, which is all right. But peace. is that So- going to put money in people's pockets? Sir, That's if all you are I'm talking concerned about a with. big swing, 38 to 50%, now 12% cannot be achieved overnight. You have to strive, you have to work hard. 12% voting population may jump. You need to have something spectacular. And that spectacular thing comes, I think, only by these activities when there's a massive swing across the country towards one particular political party. Right, I think we have Mr. Arshad Azmi with us, but I'm getting contradictory messages from the PCR. I have a message which says he's connected, the other message says there's a network issue and he's not connected. So is Mr. Arshad Azmi connected? Right, so he is connected. Thank you. Well, you guys could have said that. Arshad Azmi sahab, namaskar. हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। तो आज राहुल गांधी जी ने ट्रक ड्राइव किया सर, ट्रक ड्राइवर्स की समस्याओं को लेकर के वो उन्होंने खुद ट्रक ड्राइव किया है देखने के लिए कि भाई क्या समस्याएं होती हैं। तो अब तो राहुल गांधी जी इज सेटिंग द एजेंडा। अभी तक क्या होता था कि कांग्रेस रिएक्ट करती थी, नाउ यू आर फोर्सिंग द बीजेपी टू रिएक्ट। अब आप लोग जो कर रहे हैं उस पर बीजेपी रिएक्ट कर रही है, विच इज अमेजिंग, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। तो अब आगे और क्या करने वाले हैं राहुल गांधी साहब, सर बताएं। देखिए साहब, आम देश की 140 करोड़ जनता का, उनके दिलों का हाल जानने के लिए, उनके रहन सहन, उनकी तकलीफों को जानने के लिए लोगों के साथ, उनके साथ जुड़ना, उनके बीच जाना, यही राजनीति का सबसे अहम कर्तव्य है जो राहुल गांधी जी आज निभा रहे हैं। और जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ उन्होंने शुरू किया था, एक आम आदमी तक जाके उसके मन की बात सुननी है, उसकी परेशानियों को जानना है और उसके दुखों का निपटारा कैसे होगा, इसके ऊपर सरकारें कैसे काम करेगी, उसकी रणनीति बनाना है। वो तमाम सिलसिला आज भी चल रहा है और आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी द्वारा इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे जो आम आदमी के दिलों तक, उनकी बातों को सुनने तक के लिए पहुंचने का रास्ता बन सके। उसी की एक मिसाल थी जो ये, जिसका जिक्र अभी आपने यहाँ पर किया। Fantastic, but it was really fantastic. Pradeep ji, that was really fantastic to You know, see Rahul yes. Gandhi driving a truck and Rahul Gandhi interacting with all the truck drivers and actually listening to their आजमी problems. साहब, yes, Fantastic. what you're saying is बहुत। आजमी साहब, मगर बीजेपी वालों को कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ दिखा रहे, कुछ काम तो नहीं करते। स्मृति ईरानी जी आज ही उन्होंने बार बार ट्वीट के माध्यम से कहा कि राहुल गांधी जी अगर काम करते तो अमेठी से निकलना नहीं पड़ता भाग के। उनका कहना है कि अमेठी से वायनाड जाके वहां से लड़। उनका कहना है कि पूरे अमेठी में 80% अमेठी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था when Rahul Gandhi was the MP on this particular constituency has been nurtured by the Gandhi family। तो बोले कि 80% इलेक्ट्रिसिटी नॉट देयर, न ढंग के कॉलेज थे, न ढंग के हॉस्पिटल थे, इट वॉज बैकवर्ड एज बैकवर्ड। स्मृति ईरानी जी और बीजेपी का कहना, अगर राहुल गांधी सचमुच दिल से कुछ काम करते हैं लोगों के लिए तो अमेठी से उनको वायनाड नहीं जाना पड़ता। हाउ विल रिएक्ट आजमी साहब? देखिए साहब, इसका जवाब बहुत आसान है और वो ये है कि सिर्फ इस बात का स्मृति ईरानी जो है वो वहां की जो सांसद अभी बनी है पिछले 4 साल से, तो वो 4 साल में उन्होंने कौन से ऐसे काम कर दिए जो अमेठी में पहले नहीं हुए थे या जिनसे अमेठी की पूरी किस्मत बदल गई। उन 1, 2, 4 कामों का जिक्र तो वो करें। आज पूरे अमेठी में आप चले जाइए, आज भी उनके नाम के बैनर और पोस्टर लग रहे हैं कि क्या लापता होने के बैनर और पोस्टर इसमें क्या स्मृति ईरानी के लग रहे हैं। जिस जगह की वो बात कर रही है अमेठी की, वहां से राहुल गांधी इससे पहले 4 मर्तबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो वो तो अभी पहली मर्तबा है और सिर्फ 4 साल हुआ उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर, और इतने 4 सालों में ही वो इतनी सारी बातें बता रही है कि 80% इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी
और कॉलेज नहीं थे। स्मृति ईरानी का क्या योगदान है पिछले 4 सालों में उस अमेठी को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए, जहां पहले पिछले सालों में कांग्रेस की ही ये देन है कि वहां पर अलग अलग तरह की मिलें लगी हैं, जहां हजारों की तादाद में लोग आज भी काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो स्मृति ईरानी को और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, राहुल गांधी का ये जो अंदाज है, जो वो खुलेआम लोग उतर कर बड़ी आसानी के साथ एक आम आदमी तक पहुंच रहे हैं और उससे मिल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसका हाल जान रहे हैं, वो तकलीफ दे रहा है इनको, क्योंकि इसी बात का ये तंज किया करते थे राहुल गांधी जी पर। और आज राहुल गांधी जी वो तमाम चीजों को दरकिनार करके सड़कों पर उतर गए हैं, एक आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आने वाले 1 साल के बाद चुनाव होगा, उससे तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और सर एक साल सिर्फ बचा है, 1 साल के बाद फिर अमेठी में चुनाव होगा और उस चुनाव में यह तय हो जाएगा कि स्मृति ईरानी ने, जो पिछले 4 साल से अमेठी से लापता है, उन्होंने कितना विकास किया अमेठी में और कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोग वहां से, उनकी बनाई हुई कौन सी कॉलेज है वहां पर अमेठी में जिसमें पढ़कर लोग तालीम याफ्ता हो गए। ये 1 साल बाद उनको खुद पता चल जाएगा। और अरशद आदमी साहब, राहुल गांधी जो अमेठी से हारे हैं, उसका जो एनालिसिस हुआ है, उसका जो विश्लेषण हुआ है, वो इसलिए हारे कि 13 इंडिपेंडेंट लोग खड़े किए थे बीजेपी ने वहां से। 13 इंडिपेंडेंट्स स्टूड फ्रॉम अमेठी, जिन्होंने तकरीबन 70,000 के करीब वोट काटे और स्मृति ईरानी जी 70,000 वोटों से ही जीती। वेरी फ्रैंकली, अगर इफ द कांग्रेस हैड वर्कड आउट अ गुड स्ट्रेटजी देयर, बड़े आराम से काफी कुछ हो सकता था। खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन यहां पर आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1, अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 आने के पहले पहले मैं ये कह रहा हूं कि अभी उन्होंने ट्रक चलाया, आगे न जाने और क्या क्या चलाएंगे। तो बहुत क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसमें कांग्रेस का जो संगठन है वो किस प्रकार अपना योगदान देगा? अरशद आजमी साहब। देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का जो संगठन है, अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के संगठन को ब्लॉक स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक जिस तरह से कसा जा रहा है, जिस तरह से हर महीने अलग अलग प्रोग्राम राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से स्टेट कमेटियों के पास भेजे जा रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कोई भी किसी भी तरह का मुद्दा जो अब वहां AICC से निकला, और चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे दूसरे कोई भी मामले हो, उसके ऊपर जो विरोध करने का, जो प्रदर्शन करने के मामले आए, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने भरपूर तरीके से प्रदर्शन किया। तो योगदान ऐसा है कि ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा शुरू हुई, हकीकत ये कहा जाए तो ये है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके बाद जो कांग्रेस के संगठन में एक जान सी आ गई, वो कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं निराश हो रहा था कि कांग्रेस को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए और वो नहीं कर पा रही थी, उससे निराश हो रहा था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उस कार्यकर्ता में एक जोश भर गया जब उसने देखा कि उसका लीडर राहुल गांधी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए कमर कस के निकल चुका है। तो उस तरफ पूरे कार्यकर्ता टूट पड़े। आपने देखा हर स्टेट में आम आदमी भी बहुत सारे जुड़े, लेकिन बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। 200-500 किलोमीटर आप कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को अगर पूछेंगे तो हर कार्यकर्ता ने 200-500 किलोमीटर पैदल चलने का काम भारत जोड़ो यात्रा में किया। ये योगदान था, ये उस कार्यकर्ता का जोश था जो इस देश से भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकत को हटाना चाहता है और इस देश में दोबारा संविधान का राज कायम करना चाहता है। तो एक बड़ा योगदान आने वाले दिनों में भी कांग्रेस संगठन का देश की राजनीति में होगा। आजमी साहब, मोदी जी आज ऑस्ट्रेलिया विजिट वाज फैंटास्टिक। करीबन 20,000 क्राउड थे और सब टिकट खरीद के वहां पर इंडियंस आए थे और कुछ लोगों ने चार्टर फ्लाइट करके वहां पर पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी को सुनने के लिए। वहां के प्राइम मिनिस्टर भी कहा कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन एक रॉक स्टार के बाद मोदी जी आप इतने बड़ा संख्या और पेड टिकट के पूरे स्टेडियम भरने बहुत 8-10 साल के बाद ये हो रहा है, और कहा कि यू आर द रियल बॉस। तो इस चीज को कांग्रेस ने G7 G20 मोदी ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, इसको पर्सनल ग्लोरिफिकेशन कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने।
बोले कि मोदी जी अपने आप को खुद ग्लोरीफाई कर रहा है। तो क्या आपको ये गलत नहीं लग रहा? बिकॉज अगर राहुल गांधी ट्रक चलाता है तो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं है। राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा इज नॉट अ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, बट मोदी जी को अगर जो बाइडेन गले मिलता है, ऋषि सुनक गले मिलता है, बाकी जो टॉप के लीडर्स है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से गले मिलते हैं, तो आप बोलते हो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है। इज इट नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड? क्या ये देश के लिए गर्व की बात नहीं है सर? आजमी साहब देखिए, अगर थोड़ा सा आपको जो है 2-4 महीना इतिहास में जाना पड़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि देश में कैसे कैसे हालात रहे, खास तौर से जब अडानी स्कैम हुआ, जिसमें एक आम आदमी के लाखों रुपए जो है वो पानी में मिल गए, उनकी वैल्यू जीरो हो गई, और किसी भी तरह के अडानी पे उठाए हुए सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे नहीं पाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी और बहुत कठिन समय था। उसके बाद आप देखिए फिर कर्नाटक का चुनाव आ गया। कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह मोदी जी ने अपने आप को पेश किया, लार्जर देन लाइफ का इमेज बना के मीडिया ने निकाला, उनको पूरी तरीके से कर्नाटक के चुनाव में उतारा और ये बताने की कोशिश की कि अब मोदी जी उतर गए हैं और वो कर्नाटक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, वो पूरी तरह से मोदी जी के उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर्नाटक की आवाम आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बुरी तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हार गई। नरेंद्र मोदी जी का वो चेहरा जो वो बनाकर पूरे देश में घूम रहे थे, कर्नाटक में आके धड़ाम से वो इमेज जमीन पर गिर गई। उसके बाद आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर पहलवान महिलाओं का एहतजाज चल रहा है, उनका प्रदर्शन चल रहा है। ये तमाम मुद्दे जो थे, ये पिछले दिनों में इन्होंने मोदी इमेज को जो मीडिया ने गढ़ा था, उसे पूरी तरह से उन्होंने जमीन पर ध्वस्त कर दिया। अब उसे दोबारा पलटने के लिए, उस इमेज को दोबारा बनाने के लिए मोदी जी को जरूरत थी इस तरह के एक दौरे की। ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, सिडनी में जो प्रोग्राम हुआ आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया में आरएसएस की 50 ब्रांचेस हैं जो 8 शहरों में चलाई जाती हैं। इस तरह का प्रोग्राम आरएसएस वहां पर जिस स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, बल्कि उसी स्टेडियम में आरएसएस जो है साल भर में कम से कम 5 प्रोग्राम करती है। और पूरे ऑस्ट्रेलिया से आरएसएस के मेंबर उस प्रोग्राम में आते हैं, न सिर्फ आते हैं बल्कि पैसे के साथ वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये 2.5 करोड़ लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के। 2.5 करोड़ तो लोग नहीं आए थे मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए और वो देखने के लिए। ये तमाम के तमाम आरएसएस के मेंबर थे। अगर इनके रिकॉर्ड आप निकालेंगे, इनकी जांच आप करेंगे, तो ये तमाम के तमाम लोग आपको आरएसएस से जुड़े हुए मिलेंगे, जो न सिर्फ आरएसएस के मेंबर हैं बल्कि आरएसएस को आर्थिक तौर पर भी मदद करते हैं। तो ये इवेंट था। और मुझे बताइए, ये कोई नई बात नहीं है। क्या ये अब पूरा देश नहीं जानता कि मोदी जी हर चीज को इवेंट बना देते हैं? हर जगह जाना, लोगों को बुलाना, वहां इनवाइट करना, उसके बाद ढोल बजवाना। साहब देखिए, मैं तो आपने राजीव गांधी जी की एक तस्वीर देखी होगी, एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे। राजीव गांधी जी जब अमेरिका गए थे तो रोनाल्ड रेगन उनके साथ चल रहे थे और उन्होंने हाथ में छतरी पकड़ी हुई थी अमेरिकी सदर ने। अब मानिए, अंदाजा लगाइए कि अगर वैसी कोई तस्वीर प्रधानमंत्री जी मोदी जी की निकल जाती है तो ये देश का गोदी मीडिया क्या कर देगा साहब? ये तो पूरे देश में बवाल मचा देगा। एक पीएनजी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पैर छू लिया मोदी जी के। चलिए भाई, मोदी जी 70 साल प्लस हैं और वो प्रधानमंत्री जो वहां के जो है वो 50-55 साल के, अगर पैर भी छू लिया तो ठीक है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पर पीएनजी के उस प्रधानमंत्री जी ने जो पैर छुआ, मुझे सबसे अच्छा बयान लगा संजय राउत जी का। उन्होंने कहा कि उनको पीएनजी के प्रधानमंत्री को लगा कि कोई जादूगर आ गया है, क्योंकि पीएनजी में काले जादू का बहुत चलन है। साहब, ये जो पीएनजी के प्रधानमंत्री थे जेम्स मरापे, ये 2012 में ये अपने देश के वित्त मंत्री थे और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इनके ऊपर एफआईआर हुई थी, पुलिस ने इनको वारंट इश्यू किया था। 2019 आते आते इनको वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो मरापे ने पहचाना कि वो किसके पैर छू रहे हैं और उसके बाद उन्होंने भी गले लगाया। भ्रष्टाचार का कितना बेहतरीन संगम, कितना बेहतरीन मिलाप वहां पर पीएनजी में हुआ। तो ये देखिए, इवेंट है, इससे कोई देश की गरिमा नहीं बढ़ती, इससे कोई देश का गौरव नहीं बढ़ता। सर ये बताएं,
सर अरशद साहब आलमी एक मिनट, साहब, प्रधान एक मिनट से एक सेंटेंस बोलना हाँ बोलिए चाहता ना हूं सर, मैं। बोलिए बोलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जी। वो अमेरिका और लंदन की सड़कों पर यूं ही निकल जाते थे और हजारों की तादाद में लोग, उस वक्त ना मीडिया था ना सोशल मीडिया था, लेकिन हजारों की तादाद में लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहचान कर उन्हें घेर लिया करते थे कि भारत का प्रधानमंत्री आया। साहब गरिमा तब बढ़ती है, ये इवेंट लगा देने से, स्टेडियम में बुला लेने से और एक स्क्रिप्टेड भाषण पढ़ देने से गरिमा नहीं बढ़ती। ये सर, आप ये इमेज बताएं। का, ये जी। इमेज को रिबिल्ड करने की एक कोशिश थी जो पिछले दिनों देश के हालात में मोदी जी की इमेज को बिगाड़ दिया है। सर आप ये बताएं, इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा है कि चलिए सिडनी में जबरदस्त प्रोग्राम हुआ प्रधानमंत्री जी का, सबको अच्छा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए इतने ज्यादा लोग आए, उनको सुनने के लिए आए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इससे जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत कम हो जाएगी सर? अब इससे देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूं, मैं वही आपसे कहना 1250 चाह रुपए रहा का जो हूं। आज एलपीजी सिलेंडर हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के बड़े इवेंट से वो कम हो जाएगी कीमत क्या? मैं तो पूछा हूं सर आपसे। साहब मैं, आप, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। साहब मैं वही बताने जा रहा हूं कि ये जो इवेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इस इवेंट से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचेगा और वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सिर्फ उन्हें इस इवेंट से फायदा पहुंचेगा कि वो इमेज जो हिंदुस्तान में पिछले महीनों इलेक्शन हारने के बाद, अडानी के स्कैम के बाद, जंतर मंतर पर महिलाओं का जो प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद जो महंगाई बढ़ गई है, उसके बाद जो इमेज गिर गया था, उस इमेज को रिबिल्ड करने की जो कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, तो इससे फायदा सिर्फ प्रधानमंत्री को पहुंचेगा। तो और देश आपके की दूसरे आर्थिक हालात से क्या लेना देना है? तो आपके मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक, जैसे फॉर एग्जांपल आप कर्नाटक में जीते, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, तो यहां पर क्या आपकी सरकारें जो हैं वो एलपीजी गैस सिलेंडर पे 50% सब्सिडी देंगी सर? देखिए, मैं आपने शायद वो ऐलान सुना नहीं हमारी सरकारों का। अभी गहलोत साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया, कि वो 1100 वाला सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में देंगे, और वही ऐलान देखिए मध्य प्रदेश में भी है। ऐसा तो ये जो ऐसा कहा तो है जी। हाँ, ऐसा कहा है, करेंगे साहब। अभी कर्नाटक में देखिए, जो 5 गारंटियों का वादा किया था जी। कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो सोनिया गांधी ने, जो भी बड़े नेताओं ने हमारे जो ऐलान किया था, जो गारंटी का वादा किया था, आपने देखा वो पहली कैबिनेट में पास हो गया जी, पास हुआ। तो देखिए कांग्रेस, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मैं एक बात समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से, दर्शकों को भी यह बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कई साल इस मुल्क को चलाया है। इस मुल्क के लोगों के साथ, उस मुल्क के लोगों के दुख सुख में कांग्रेस ही हमेशा से रही है। 65 साल से ज्यादा कांग्रेस ने चलाया है, तो कांग्रेस समझती है लोगों की परेशानियों को। कांग्रेस को यह पता है कि एक आम आदमी के साथ खड़े होने से, एक आम आदमी के दुख दर्द को कैसे बांटा जाए, ये कांग्रेस को पता है। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है साहब, कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां रेवड़ियां बांट रही हैं। एक गरीब आदमी को अगर आप 2000 रुपए का सपोर्ट कर देते हैं, एक गरीब महिला को अगर आप 1100 रुपए का सिलेंडर 500 रुपए में दे देते हैं, तो ये लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके तमाम कॉर्पोरेट दोस्तों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर दे रही है। वो रेवड़ियां नहीं है, उनको वो रेवड़ियां नजर नहीं आती। उससे अच्छा तो उस किसान को एमएसपी दे देते। वो किसान जो आत्महत्या कर रहा है, वो किसान जिसने बॉर्डर दिल्ली में बैठकर 1 साल तक धरना आंदोलन किया, जिसमें 700 किसान मर गए, उससे बेहतर था, इन कॉर्पोरेटों का कर्ज माफ करने से बेहतर था उन्हें एमएसपी दे देते। कम से कम वो 700 किसानों की जान नहीं जाती, कम से कम देश के हजारों किसान जो है वो आत्महत्या नहीं करते, कम से कम देश के अंदर एक बेहतरीन वातावरण पैदा होता है कि किसानों के हित की ये सरकार है। लेकिन आपने ऐसा तो किया नहीं। आज कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह के ऐलान कर लोगों का साथ देने के लिए खड़ी हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, एक चीज मैं कहना जी, चाहूंगा, एक चीज, छोटी सी बात। आप छोटे बिजनेसमैन से अगर बात करें ना, छोटे दुकानदार जो हैं, छोटे,
और जो छोटे व्यवसाय चलाने वाले हैं उनसे अगर आप बात करें, हर कोई ये कहता है कि यार कांग्रेस के राज में हो सकता है कि बड़े स्कैम्स की बात होती हो, ये वाला 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, लेकिन जेब में पैसे हुआ करते थे। आज की तारीख में किसी की जेब में पैसे नहीं है, मतलब गायब हो गए हैं पैसे, बस लगे सर आए। अरशद आजमी साहब बताएं। देखिए साहब, आप देखिए, अगर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा इसलिए कि समय भी कम रहता है जी। अगर आप आज बैंक से लेकर आम आदमी, जीएसटी हो गया, बैंक का ट्रांजैक्शन हो गया, चाहे वो दूसरी चीजों को खरीदने का, ये तमाम चीजों का अगर आप जायजा लेंगे तो सरकार ने हर चीज पर टैक्स लगा दिया है। पहले शुरू में मुफ्त की चीजें कहते हैं, बाद में उसको आदत पड़ जाती है और उसके बाद फिर उस पर टैक्स लगाया जाता है। हर चीज पर टैक्स लग रहा है। आप देखिए कि आम आदमी का जो परचेजिंग पावर था वो कितना कम हो गया। पहले के बनिस्बत जो महंगाई बढ़ी। अब एक छोटी सी मिसाल, बहुत बड़े उस पर समझाने की जरूरत नहीं है। अगर एक घर में एक आदमी को जिसकी पगार 10,000 रुपया है या 15,000 रुपया वो कमाता है, अगर उसको सिलेंडर के दाम दुगने देने पड़ रहे हैं, अगर उसको चीनी और तेल के दाम दुगने देने पड़ रहे हैं, अगर उसको स्कूल की फीस दुगनी देनी पड़ रही है, तो मुझे बताइए उस आदमी की जेब में पैसा बचेगा कहां से? और ये तमाम चीजों पर टैक्स लगा कर रखा है सरकार ने। उसके बाद सरकार सबका विकास और सबका साथ की बात करती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त जो कच्चा तेल था, देखिए कच्चे तेल से देश की महंगाई पर, देश की बेरोजगारी पर बहुत असर पड़ता है जी। तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कच्चे तेल की कीमत, एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $150 तक चली गई थी। लेकिन तब भी इस देश के अंदर डीजल और पेट्रोल 50 और 65 रुपए में बिका करता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौर में उसी कच्चे तेल की कीमत $30 से $40 बैरल की हो गई थी। लेकिन तेल कितने में बिका साहब? 90 और 100 रुपए में बिका। तो आप कैसे पैसा रहेगा आदमी की जेब में जब उसे हर उस चीज के दुगने दाम अदा करने पड़ रहे हैं जो पहले वो आधे में ही कर लेता था। जो आदमी का महीना, जो आदमी की पगार पहले 30 दिन में खत्म हुआ करती थी, आप अंदाजा लगाइए आज वो पगार, उसके पैसे, कमाए हुए पैसे 15 दिन में खत्म हो जाते हैं। आजमी साहब, उसकी जेब में पैसे कहां से रहेंगे? the new parliament building, सावरकर और द्रौपदी, अभी द्रौपदी मुर्मू, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश कहते हैं कि वाई नॉट जॉइन द्रौपदी मुर्मू, बट ये सावरकर और इनको मर्ज करके क्या महाराष्ट्र में एमवीए में कुछ प्रॉब्लम हो सकता? बिकॉज मोदी साहब, बीजेपी का जितने प्रवक्ता, इनका कहना है कि मोदी जी अभी एवरी मंथ, हर महीने मुंबई या महाराष्ट्र में आने वाले हैं और चुनाव भी शायद अक्टूबर में है। तो सावरकर के इशू पर वापस पोलराइजेशन होगा मुंबई महाराष्ट्र में, और एमवीए अगर अलग अलग मुंबई बीएमसी लड़ती है, लाइक कांग्रेस आप चाहते हो, आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम सब सीट लड़े, तो अगर ये बंटवारा हो जाता तो बीजेपी को शायद आसान पड़ जाएगा। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए साहब, मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो साथ लड़ने की और अलग अलग लड़ने की जो कवायद है, ये जो बात है, मैं आपको बताऊं, मुंबई कारपोरेशन का जो चुनाव है वो एक मुंबई कर का चुनाव है। और मुंबई कर वो होता है जो अपने हर तमाम रोजमर्रा की जरूरतों से, उसके अपने मुद्दों से बहुत ज्यादा वो जागरूक होता है। तो ये जो मुंबई कारपोरेशन का चुनाव है, ये धार्मिक मुद्दों पर चुनाव कभी लड़ा नहीं गया आज तक। ये अपनी मुंबई शहर की समस्याओं पर ही ज्यादातर इस चुनाव को लोग लड़ते आए हैं और लोग अपना वोट डालते आए हैं। तो देखिए, जहां तक आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट का ये है, पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट के उद्घाटन की जो बात है, देखिए साहब, ये एक मानसिकता है, एक साइकोलॉजी है ये हुकूमत करने की। और ये साइकोलॉजी जो है ये आपको ले जाती है, फिर आप बात आ जाती है जब मोदी जी की और हिटलर का नाम आता है तो फिर लोग नाराजगी जाहिर करते हैं कि आप प्रधानमंत्री को आप लोग जो है वो हिटलर से क्यों जोड़ रहे हैं। लेकिन जब आप काम करने के तरीकों को देखेंगे तो फिर वहीं जाना पड़ता है। हिटलर जो थे उसको भी बहुत शौक था इस बात का कि वो ऐसे बहुत सारे काम करे जिससे उसके बाद लोग उसे याद रखें। तो वो एक आज जो ये जो मामला है नई बिल्डिंग की उद्घाटन का, राष्ट्रपति जो है वो इस देश का पहला नागरिक होता है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति का दर्जा है और दोनों सदनों का हेड जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति बिल्डिंग का संसद बिल्डिंग का उद्घाटन है और संसद बिल्डिंग के उद्घाटन में
आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं। क्यों नहीं बुला रहे हैं? इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि फिर वो प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन होगा कि राष्ट्रपति के रहते हुए आज तक इस देश में कभी प्रधानमंत्री ने किसी भी चीज का उद्घाटन नहीं किया, चाहे वो कभी कभी प्रधानमंत्री रहे हो। तो जब इस बिल्डिंग का, इस राष्ट्र संसद भवन की बिल्डिंग के नई बिल्डिंग बनने की शुरुआत हो रही थी, जब इसका भूमि पूजन हो रहा था, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, तब उन्हें भी भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। अब इस बिल्डिंग को नया बन गया और इसकी शुरुआत होने जा रही है, तो राष्ट्रपति मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया। देखिए, इसमें दो तरह की मानसिकता है। पहली मानसिकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अभी भी जात पात के उस खेल से ऊपर नहीं उठ पाए जिसकी ये पैरवी करते हैं। जो ये जो अगड़ेपन की जो का साथ खड़े होने का जो ये है इनका सिस्टम है, उससे ये अभी भी छुटकारा नहीं पाए। ये जितना भी ऐलान करें कि ये पिछड़ों के साथ हैं, ये आदिवासियों के साथ हैं, ये ओबीसी के साथ हैं, लेकिन हकीकत हमेशा सामने आ जाती है। रामनाथ कोविंद दलित थे, उन्हें भी इस कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं किया गया। आज राष्ट्रपति मुर्मू जो हमारी है वो आदिवासी हैं और एक ऐसी महिला है जिन्होंने गवर्नर रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको पूरे लोग हमेशा याद रखेंगे, लेकिन उनको भी इससे दूर रखा गया। ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है, ये उन्हें करना है। प्रधानमंत्री कौन होते हैं आप सांसद की इमारत का उद्घाटन करने के लिए? लेकिन मैंने कहा ना, वो एक साइकोलॉजी है कि ऐसा हमेशा हर चीज में अपना नाम, रोड का उद्घाटन आप करेंगे तो अरशद आदमी साहब चलते चलते और संसद का भी आप करेंगे। चलते चलते क्या बीएमसी का चुनाव एमवीए इकट्ठा लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी? देखिए साहब, मैं आपको फिर मैं एकदम सही इसका जवाब दूंगा। एक आम तौर से जो होता है, ये जो चुनाव मुंबई कारपोरेशन का जो चुनाव है और किसी भी कारपोरेशन का जो चुनाव है, तो ये एक आम बात कही जाती है कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। देखिए, हर कोई एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ नहीं सकता। तो ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। इसमें कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड से जो चुनाव लड़ते हैं, वो पार्टी की मजबूती की एक नींव होती है, क्योंकि वो कार्यकर्ता फिर हमेशा अपने वार्ड में, अपने इलाके में सक्रिय होता है, जो आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ठीक से काम कर पाता है। तो आमतौर से कभी भी जो है, ये पिछले दिनों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी जैसी पार्टियों ने सिर्फ इस बुनियाद पर गठबंधन नहीं किया कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। अगर साथ नहीं लड़े तो उसकी बुनियाद सिर्फ यही होगी कि सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिल जाए, इसलिए शायद अलग अलग चुनाव लड़ने। और अगर साथ लड़े तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर वो ठीक तरीके से और मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकेगा। लेकिन ज्यादातर कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी अलग ही लड़ती है, ज्यादातर अलग ही लड़ी है, अलग ही लड़ी है। मेरा भी वही कहना है, अलग ही लड़ी है। लेकिन मैं एक बात और कह देता हूं, चाहे अलग लड़े, चाहे ये महाविकास आघाड़ी अलग लड़े, चाहे एक साथ लड़े, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ ही जो है शिंदे जी की जो पार्टी है, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि ये 50-60 सीटों से ऊपर ये दोनों पार्टियां नहीं जाएंगी। जो हाल करके रखा है इन्होंने जो हाल करके रखा है पिछले 1-1.5 सालों में, आप आकर मुंबई शहर की हालत अगर देखेंगे तो जो तहस नहस कर दिया है एक नाथ शिंदे जी की सरकार ने, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुंबई कमिश्नर ने ये सर्कुलर जारी करके रखा हुआ है कि कोई भी एक्स कॉर्पोरेटर वो कारपोरेशन की बिल्डिंग में आने से पहले वो वजह बताए कि वो क्यों आना चाहता है। मतलब हर तरीके से पाबंदी, हर तरीके से बंदिश। देखिए साहब, आज 1-1.5 साल हो गया कारपोरेटर अपने पद पर नहीं है, लेकिन आप जाइए जनता के बीच, आज भी वही एक्स कॉर्पोरेटर काम कर रहे हैं और जनता भी उन्हीं से काम मांग रही है जैसे वो अभी भी कारपोरेटर है। लेकिन we've really run out of time. Thank you so much for joining us. Really and truly, it's a pleasure talking to you as always. Thank you very much. Thank you so much, sir. Namaskar. Okay, thank you. Right, and at the moment with us, Mr. Anand Dubey of the Uddhav Thackeray Sena. आनंद दुबे जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो माफी आपको, आपके पास मैं 10 मिनट के बाद आ रहा हूँ, उसके लिए माफी जी। नमस्कार सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय भवानी, जय शिवाजी। कैसे हैं जय सर? भवानी, एकदम बढ़िया आशीर्वाद है सर। जी चलिए चलिए, राजू आपकी सर और आपकी शक्ल पे मुस्कान प्रदीप तो सर। आई, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि आप बड़े नाराज हो रहे हैं, आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए मैं नहीं। फिर बोल रहा हूँ माफी। नहीं, लेकिन नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि एमबीए के इकट्ठे लड़ेंगे बीएमसी या अलग अलग लड़ेंगे, ये तो बता दो सर। अब क्लियर कर ही दो। राजू सर, प्रदीप सर, आप दोनों जन को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हाँ हूँ। कमाल है। ये जिम्मेदारी ये पार्टी राग से फिर ये राग भैरवी फिर शुरू हो गया। अच्छा हाँ, बोलिए सर, बोलिए। ये काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। जी। हम अकेले लड़ेंगे कि हम साथ में लड़ेंगे, इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। जब सही समय आएगा तो आप सबको, आपके माध्यम से देश की जनता, मुंबई की जनता को बताया जाएगा। सर आज जो मीटिंग हुई है कांग्रेस की जो आज मीटिंग हुई है, उसके अंदर ज्यादातर लोगों का मत था कांग्रेस में ही कि हर चुनाव जो है अब महाराष्ट्र में, भले वो कॉर्पोरेशन का हो या जहां मर्जी का हो, वो बतौर एमबीए के तहत ही लड़ा जाए, ऐसा कांग्रेस की मीटिंग में ये देखने को मिला। सर कांग्रेस हमारे सहयोगी दल हैं, हमारे महाविकास आघाड़ी के घटक दल हैं। अगर उन्होंने आपस में कोई सहमति बनाई है तो उसके लिए उनको धन्यवाद। देखिए, हम मिलकर लड़ें चाहे अलग लड़ें, ये मुद्दा नहीं है राजू सर। मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम हराएं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस समय देश पर कब्जा कर लिया है, यह शब्द का प्रयोग करूंगा कि एक ऐसा माहौल बना दिया है कि इस माहौल में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता फल फूल नहीं सकते। कल आपने देखा जिस प्रकार से जयंत पाटिल जी को 9-10 घंटे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। वो बार बार कह रहे हैं कि जिस चीज के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है, मैं कभी उस चीज के बारे में जानता ही नहीं हूँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जी। सिर्फ इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है कि मैं विपक्ष का एक बड़ा नेता हूँ, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो ठीक है भाई, अगर ये राजनीति में गलत बात हो गई है कि विपक्ष में रहना है, तो कोई बात नहीं, इसका सामना करेंगे डटकर। उसी प्रकार महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना जीतना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है लोकतंत्र को बचाए रखना। अब लोकतंत्र तो तभी बचेगा जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हरानी ही हम सबकी प्राथमिकता है और उम्मीद करता हूं कि 2024 तक ये बनी रहेगी। प्रदीप जी। दुबे जी, बीजेपी, अमित शाह का टारगेट है कि हर स्टेट में 50% वोट शेयर बीजेपी को बढ़ाना है ताकि 350 प्लस या उनका मेजॉरिटी हो जाए बीजेपी का। आज प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में उनका सत्कार हुआ, 20,000 लोग, 20,000 लोग टिकट खरीद कर अंदर स्टेडियम में गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर कहा कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन 9 साल पहले कुछ आए थे, उसके बाद इतना बड़ा फंक्शन यहाँ पर पहले बार हो रहा है 9 साल के बाद। बोले कि आप ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से भी बड़ा बॉस हो आप। तो इस प्रकार, तब क्या है इसमें आपको G7, G20, ये एक एक कार्यक्रम जो हो रहा है और मोदी जी वर्ल्ड स्टेज में इतना पॉपुलर हो रहा है, तो आपको लगता है कि इसमें उनका जो टारगेट है 50% वोट शेयर, वो आसानी से वो पा जाएगा? देखिए प्रदीप जी, दो अलग अलग बातें हैं। एक प्रधानमंत्री जी का देश में कितनी लोकप्रियता है वो, और एक प्रधानमंत्री जी की देश के बाहर विदेशों में कितनी लोकप्रियता है वो। हमारे देश के बहुत सारे लोग दशकों से विदेशों में रहते आए हैं। जब वो सुनते हैं कि भारत से कोई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जो अच्छा बोलते हैं, उनके भाषण देने का एक अंदाज है, तो लोग स्वाभाविक सी बात है उन्हें सुनने के लिए जाते हैं। खूब भीड़ होती है, उनके लिए ताली भी बजाते हैं। इसका ये कतई मतलब न लगाया जाए कि वो भारत में भी उतने ही लोकप्रिय होंगे। भारत में जब वो जाते हैं, कर्नाटक जैसे चुनाव में जहां हजारों टन फूलों की वर्षा उन पर होती है, लोग कई कई किलोमीटर खड़े रहते हैं उनको देखने के लिए, लेकिन वोट नहीं मिल पाता। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक प्रधानमंत्री जी है, वो किसी दल के नहीं होते, वो पूरे 140 करोड़ के प्रधानमंत्री होते हैं। जब वो अपने देश को छोड़कर बाहर विदेशी की धरती पर जाते हैं तो उनका खूब सम्मान होना चाहिए, सम्मान होता आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक सबने अपने अपने समय पे उचित सम्मान पाया है। लेकिन अब वहां की पॉपुलैरिटी को आप भारत में नहीं भजा सकते। कैसे? जैसे ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो भी लोकप्रिय थे, वो भी अच्छा भाषण देते थे, लेकिन जब वो भारत आए नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ यहां भी हुई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो चुनाव हार गए। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य अलग अलग होते हैं, एक ही उदाहरण हर बात नहीं बैठता।
मोदी जी लोकप्रिय नेता है, अच्छा बोलते हैं, ये ठीक है, पर 2024 के चुनाव में वो वोट अब परसेंटेज बढ़ा पाएंगे, ऐसा हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे देश का नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार नहीं पा रहा, हमारे देश का किसान सही सम्मान नहीं पा रहा, हमारे देश की महंगाई आसमान छूते जा रही है, गरीबी का हाल आप देख रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पर जब चुनाव लड़ा जाता है तब आदमी वोट पाता है। तो यहाँ अब पर अगर आनंद दुबे जी ये बताएं कि जहां तक उद्धव ठाकरे सेना का प्रश्न है, आपने अभी महंगाई की बात करी। महंगाई मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है आगे जाकर के, जैसे कर्नाटक में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, आज भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फॉर एग्जाम्पल कपास का, अभी अभी हाल ही में किशोर तिवारी जी हमारे साथ थे, कपास की जो वैल्यू थी वो तकरीबन 14,000 रुपए पर क्विंटल थी, जो गिर करके अब 7,000 पे आ गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कपास को उठा करके मार्केट तक ले जाना भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है किसान को, नंबर एक। नंबर दो, 1150 रुपए का एलपीजी का गैस सिलेंडर है, 1150 रुपए का, सीधी सादी बात है। नंबर तीन, तूर की दाल, तूर दाल की अगर आप बात करें महाराष्ट्र में सर आज 130 रुपए पर किलो है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे सेना यानी आप इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं? आनंद दुबे जी। देखिए राजीव सर, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है। जब हमारे देश में किसान कोई फसल बोते हैं, फसल लगाते हैं, इस उम्मीद में लगाते हैं कि हमने जितनी लागत इसमें लगाई है इससे ज्यादा दुगना या तिगुना कमाई हम करेंगे, ताकि साल भर हम इसी पर जीवित रहेंगे, क्योंकि दूसरा काम हमें नहीं आता। जी। लेकिन जब असमय बारिश हो जाना, तूफान आ जाना, मौसम खराब हो जाना और वो फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो सबसे पहले उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा होने का काम यदि किसी को करना चाहिए तो सरकारों को करना चाहिए। जैसे बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारी स्कीम बनाई जाती है कि अगर किसानों को नुकसान होगा तो इतनी रुपया सब्सिडी के रूप में उन्हें दिया जाएगा, कि ताकि उनका जो नुकसान है वो कम से कम हो सके, हो जाए, बहुत प्रॉफिट न मिले लेकिन नुकसान भी कम से कम हो। लेकिन उस पर सरकारें असंवेदनशील हो जाती हैं। आप देखिए कि नेतागण, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो एक बार जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम में तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन कपास के किसान हो चाहे प्याज के किसान हो, उनकी सुध लेने नहीं जाते। जब जनता के बीच में आप जाओगे नहीं, किसानों की पैरवी करोगे नहीं, उनकी विचारों का आदान प्रदान करोगे नहीं, तो कैसे जानोगे कि जमीनी हकीकत क्या है? खाली इवेंट मैनेजमेंट कर लेने से, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से कुछ लोग आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन जब आप धरातल पर जाओगे तो वो संदेश दूर दूर तक जाता है। और आज जिस ढंग से सरकार काम कर रही है महाराष्ट्र की, वह केवल और केवल ऐसे कामों में उलझी हुई है, प्रोपेगेंडा करने के लिए, विपक्ष को घेरने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने के लिए मशगूल है, न कि किसानों की, नौजवानों की बात करती है। तो आने वाले समय में यह प्रतिक्रिया वोट के रूप में आप देखिएगा, जनता दिखाएगी। इसीलिए ये चुनाव नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो चाहे और भी चुनाव हो, जब वो चुनाव नजदीक आएंगे, समय पे आएंगे, तो इन्हें हारना होगा। कर्नाटक तो अभी झांकी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान अभी बाकी है। दुबे जी, जेपी नड्डा जी यहाँ पर आए और यहाँ पर बीजेपी के पूरे कार्यकर्ताओं को कहा कि नेक्स्ट मेयर विल बी अ बीजेपी मेयर इन बीएमसी एंड दे आर मूविंग आफ्टर दैट। एकदम तौर तरीके से उन लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी शायद कंटिन्यूस हर महीने यहां पर आने वाले हैं, तो बीएमसी और अलग अलग चुनाव बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आज नीतीश राणे त्र्यंबकेश्वर टेंपल गए, वहां पर जो पूजा अर्चना करने के बाद जिस प्रकार से उनका क्लियर कट एजेंडा है हिंदुत्व का, और वो एजेंडा वो ढंग से चला रहे। क्या यह हिंदुत्व का एजेंडा आपको एकदम भ्रम में डाल देंगे कि बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना किस प्रकार है? क्या हिंदुत्व को त्याग किया है? बिकॉज बीएमसी चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, नॉट ओनली फॉर एवरीबॉडी बट स्पेशली उद्धव ठाकरे जी सेना, बिकॉज ये उनका कंटिन्यूस होल्ड रहा है बीएमसी में। तो क्या पोलराइजेशन ऑफ हिंदुत्व वोट्स वाज गोइंग टू इफेक्ट उद्धव ठाकरे सेना? कैसे देखते हो आप? मुंबई का जो हिंदू है प्रदीप जी, वो अच्छी तरह जानता है कि हमारा नेता कौन है। जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने कोरोना काल में काम किया, उन्होंने तो नहीं देखा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन्होंने तो सबकी मदद करनी चाहिए। महाराष्ट्र और मुंबई का मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला मुसलमान है।
हमारे राज्य का हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला हिंदू है। तो जब हम दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे। और हमारी पार्टी शिवसेना का तो जन्म ही छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा से हुई है। हम सब उनके आदर और सम्मान में काम करते हैं। तो हम नहीं समझते कि मुंबई और महाराष्ट्र का हिंदू और मुसलमान बटेगा, वो सब साथ में शिवसेना के रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जेपी नड्डा साहब यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो सपने देख रहे हैं कि महापौर हम बनाएंगे। एक मुंगेरी लालची हुआ करते थे, वो भी सपने देखते थे, लेकिन उनके सपने कभी सच नहीं होते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह इनका भी सपना है? क्योंकि कर्नाटक में भी ऐसे ही सपना देखा गया था कि आधे से ज्यादा, उससे भी 15, 20, 50 सीट हम ज्यादा जीतेंगे, मतलब 150 प्लस 15 तो 165 सीटें थी, लेकिन जीता इन्होंने कितना? 70 से भी कम सीटें जीती। तो मुंबई, और देखिए अब एक शुरुआत तो हो ही गई है प्रदीप जी, अब इन्हें हारना होगा, ये जगह जगह हारेंगे क्योंकि इनके वादे ये जुमले हैं। अगर इनकी बातें जुमले हैं, इनके वादे जुमले हैं, तो कौन इन पर विश्वास करेगा, कौन इन पर भरोसा करेगा? अरे भाई, मुंबई जब परेशान होती है तो मुंबई के लोकल लोग मुंबई को बचाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दिल्ली से लोग नहीं आते, यहीं के लोग एकदम ये है, सक्षम है उसे मदद करने के लिए, उसको संभालने के लिए। तो ठीक है, ये बड़े नेता लोग हैं, ये आएंगे, इनका स्वागत होगा, लेकिन इनको वोट वगैरह नहीं मिलेगा। ये जिस उम्मीद से मुंबई पर निगाहें लगाए हुए हैं कि हम मुंबई अपने कब्जे में ले लेंगे, तो मुंबई की पावन धरती किसी के कब्जे में नहीं जाने वाली है। ये हमारी माँ है और हम अपनी माँ के सम्मान में हमेशा खड़े हैं। मुद्दा यह है कि एमवीए का यूनिटी, इज द एमवीए गोइंग टू बी यूनाइटेड? बिकॉज अजित पवार जी का जिस प्रकार से बयान है कि वी आर एल्डर ब्रदर, एनसीपी इज एल्डर ब्रदर, और आगे जाके संजय राउत जी ने कहा कि ये सब जितने हमारे हैं पहले का वो हमारा ही होगा। पृथ्वीराज चौहान जी, कांग्रेस के लीडर, उन्होंने कहा हाँ, एनसीपी इज एल्डर ब्रदर, वी आर सेकेंड ब्रदर, और थर्ड सबसे छोटा भाई है वो उद्धव सेना है। तो ये जो बार बार एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है यूनिटी के बारे में, क्या ये इफेक्ट होगा? बिकॉज अलग अलग नेता का अलग अलग बयान, आपको अगर जीतना है तो आपको एक संगठित होकर करना पड़ेगा। अजीत दादा एक बड़े नेता हैं, हम सबके बड़े भाई हैं। हम नहीं जानते कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं करनी चाहिए। हम सभी भाई समान हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारे पास एक समय 56 सीटें थी, उनके पास 54-52 थी, तो हम बड़े भाई हुए। आज हमारी पार्टी टूट गई है, हमसे कुछ लोग गद्दारी करके बाहर चले गए हैं, हम थोड़े कमजोर हो गए हैं, तो क्या हमारा सम्मान नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है, सभी को उचित सम्मान मिलेगा। महाविकास आघाड़ी में तीनों दल का समान सम्मान है। जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, कौन जितनी सीटें पाएगा, उस हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। आज हमारी लड़ाई, हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को घेरने की है, उनको हराने की है। हम सब मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तीनों दलों में बहुत ही बढ़िया समन्वय है। सभी दलों की अपनी अपनी मीटिंग चल रही है। कुछ दिन पहले शिवसेना की हुई, फिर कांग्रेस की आज हो गई, कल एनसीपी की हो गई। तो रोज कहीं न कहीं हमारी मीटिंगें चल रही हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी को मुंबई, महाराष्ट्र और देश से हराना। अब उसके लिए हम कितने कामयाब होंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि एक संदेश जो आपको महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाना था, वो ये था कि किस प्रकार उद्धव ठाकरे जी के साथ धोखा हुआ, कि किस प्रकार पहले तो इतने लोग चले गए, नंबर एक, या उनको प्रलोभन देके या कुछ भी करके उनको हटा दिया गया वहां से। नंबर दो, तीर कमान चला गया। नंबर तीन, नाम भी चला गया। क्या ये संदेश आपका पूरे महाराष्ट्र में गया है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ धोखाधड़ी हुई है? ऑलरेडी चला गया है, बहुत तेजी से रोज जा रहा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक हमारा चुनाव चिन्ह हमें मिला था मशाल, जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं, रातों रात पूरे महाराष्ट्र और देश में पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि जब अंधेरी का उपचुनाव हुआ तो हमारी बहन ऋतुजा लटके जी को 70,000 से ज्यादा मतदान हुआ। तो आज का जमाना बड़ा आधुनिक है राजू सर, तुरंत चीजें फैलती हैं। सबको पता है कि हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ एक द्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र कराया है, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया है। जब उचित समय आएगा, हमारे देश की जनता, राज्य की जनता सक्षम है
करारा जवाब देने के लिए। और आप देखिएगा जैसे कस्बा बेट चुनाव में उपचुनाव हुए तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, आने वाले सभी चुनाव में इन्हें मुंह की खानी होगी, ये हारेंगे। अब चूंकि अब चुनाव हो नहीं रहे इसलिए मैं बार बार ये बात कहूंगा तो लोग समझेंगे कि देखो ये बार बार यही बात कह रहे हैं। एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, अगर 3 दिन के बाद भी चुनाव होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम रोज तैयार हैं चुनाव के लिए। इनकी तरह चुनाव का इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते हैं हम कि जब चुनाव आएगा तब उसको बहुत गाजे बाजे से उसका प्रचार करेंगे, ढोल और ताशे बजाएंगे। हम ऐसा नहीं करते। हम जनमानस के सामने हाथ जोड़कर बहुत आदर पूर्वक अपनी बात कहेंगे और हमें उम्मीद है कि जनता जनार्दन है, वो जरूर अपना आशीर्वाद हमें देगी। आनंद दुबे जी, अभी अभी जो फुटेज आपके साथ में चल रही थी उद्धव ठाकरे जी के पहले, वो मुंबई की फुटेज थी, भारतीय जनता पार्टी की फुटेज थी। वो ये दिखाते हुए कि किस प्रकार मुंबई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा उसकी कायाकल्प हो गई है। मेट्रो लाइन शुरू हो गई है, कनेक्टर बन गए हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, कोस्टल रोड बन रही है, मुंबई क्या वो ट्रांस हार्बर लिंक शुरू हो रहा है। तो सर इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या लगता है आपको लोगों के वोटिंग राजू सर, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कि ये सब कामों में हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जी। 5 साल हम देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार में थे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हमारे पास रही। एकनाथ शिंदे जी 2.5 वर्ष इसके मंत्री रहे। मुख्यमंत्री जी की एक कल्पना, एक संकल्पना है, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मुंबई का कोस्टल रोड, उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, आज वो सरकार में है, स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारी उनकी बात सुन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर उनकी बात सुन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारी योजनाओं के लिए हम भी दौड़े हैं, हमने भी खून पसीना बहाया है। और आप देखिएगा कि बीएमसी में, मुंबई में जिस प्रकार 28-30 वर्षों में हमने अच्छा काम करने की कोशिश की है, हम और भी अपना योगदान देंगे आने वाले समय में। लेकिन आनंद दुबे जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी का शख्स यहाँ पर आता है वो यही कहता है कि 25 से 30 साल तक आप लोगों ने बीएमसी को लूटा है एंड पीपल वांट चेंज। लोगों को बदलाव चाहिए। अगर हमने लूटा है सर जी, तो हमें जेलों में डाल दीजिए ना। आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, बीएमसी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो गलती न करे उसको भी आप जेल में डाल दे और जो गलती करे उसे अभी तक आप रहम व करम करें, उसे छोड़े रखें? ये तो हास्यास्पद है। ये तो न मैं मानूंगा, न आप मानेंगे, न आपके दर्शक मानेंगे। जो करप्शन किया है उसे आप पकड़ लीजिए, जांच कराइए, जेल में डाल दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन यदि हमने अच्छा काम किया है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि आप भी हमारे साथ एक 20-25 वर्ष हमारे सहयोगी के रूप में हैं। यदि आप कहेंगे कि हाँ, इन अच्छे कामों में हम भी आपके साथ रहे, तो हम आपको क्रेडिट भी देंगे, हम आपकी सराहना भी करेंगे। हम आपकी तरह गंदी राजनीति नहीं करते। हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, हम व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते। आप कहिए कि हाँ, शिवसेना वालों, आपने 25-30 वर्षों में अगर अच्छे काम किए हैं, उसमें हमारी भी कुछ साथ आपको मिली हुई है, हमें भी क्रेडिट दीजिए। दिल खोलकर आपका भी सम्मान करेंगे, आपको भी क्रेडिट देंगे। लेकिन सर, आशीष शेलार जी ने यह कहा है आज कि उद्धव ठाकरे जी को बीएमसी के अंदर मतलब 40 के कितना प्रदीप जी 40 बोला कि शायद 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी, और अगर उतनी भी मिल गई तो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा। आशीष शेलार जी वही आशीष शेलार जी है ना, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष, जो अभी कुछ दिन पहले गाय की फोटो वायरल करके बता रहे थे कि कर्नाटक की फोटो है या वीडियो है, और बाद में पता चला कि वो कहीं मणिपुर की निकली हुई है। वही आशीष शेलार जी की बात हो रही है। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि आशीष शेलार जी जो बोलते हैं उस पर आपको और हमको विश्वास करना चाहिए। यदि वो वीडियो सही नहीं था तो क्या पता है 40 वाली बात भी सही हो। तो आपको क्या लगता है सर, कितनी सीटें आएंगी उद्धव ठाकरे सेना की? 227 वार्डों में हम करीब 180 सीटें जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूरी बीएमसी, पूरी मुंबई महानगर पालिका की जनता हमारे साथ है। उन्होंने हमारे पिछले कामों को देखा है, हम पर हुए अन्याय को देखा है, वो सबको देखते हुए हमारा साथ देंगे। हम करीब 180 सीटों तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 20-25 सीटें यदि मिलती हैं, एक सम्मानित विपक्ष के नाते, तो हम उनका आदर करेंगे, उनको भी उचित सम्मान देंगे जो विपक्ष को मिलना चाहिए। 180 सीटें बतौर एमवीए की तरह या सिर्फ उद्धव ठाकरे सेना को? हम तो उद्धव ठाकरे जी सेना की बात करेंगे। एमवीए तो हमारे सहयोगी है, वो तो जरूर हमें अपनी शुभकामना तो देंगे। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल।
Thank you so much, sir. Anand Dubey ji, always a pleasure listening to you and talking to you. और प्रदीप जी आपने नोटिस करी है yes, आज शॉल निकाल दिया। आज शॉल नहीं पहनी उन्होंने। मैं तब तक शॉल नहीं पहनूंगा। नियत नहीं है। नहीं, मैं तब तक शॉल नहीं पहनूंगा जब तक आपके कार्यालय आके आपको शॉल भेज नहीं दूंगा। Thank you so शॉल much, मैंने sir. खरीद लिया है, सिर्फ मैं ऑफिस आना चाहता हूँ। कब आऊंगा? आपका स्टाफ जब बुला लेगा मैं हाजिर। सर अभी आइए, अभी। मैं कांदीवली में रहता हूँ सर, सर और आपका ऑफिस कितना दूर है यहाँ? 10 मिनट का तो रास्ता है। नेक्स्ट डिबेट जब भी होगा वेस्टर्न सर। एक्सप्रेस हाईवे पे सर, आपको अपनी गाड़ी में बैठना है, यहाँ तक आना है। क्या बात कर रहे हैं सर? नेक्स्ट डिबेट जब भी होगा उम्मीद करूंगा आपके कार्यालय में आपके सामने मैं बात करूँ। क्या बात है सर, वंडरफुल, एब्सोल्युटली विद शॉल। राइट, थैंक यू वेरी मच आनंद दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, प्रणाम सर। रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। नमस्कार, नमस्कार सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, थैंक यू। Right. So Anand Dubey ji says 180 seats, Pradeep ji. 180. Yes. 180. I tell you what, I want to listen to Mr. Narendra Modi again. Can we have him on again, please, Sydney? And do remember, Bruce Springsteen, otherwise is called The Boss. All right? The name The Boss is used for Bruce Springsteen, the rock star. And as the Australian Prime Minister said, he hasn't seen such a crowd since the Bruce Springsteen concert took place at the same stadium 9 years ago, and this crowd was even bigger than that. Pradeep ji, that's something. That is really something. It's a अब compliment. आप उसको RSS का crowd कहें, आप उसको जो मर्जी कह लें, आप उसको ये कह लें, लाए हुए लोग थे, जो भी थे, अरे थे तो सही। Every sentence of the Australian Prime Minister was filled with praise for Narendra Modi, That's our right. Prime Minister Modi. And the words that he used to praise him was absolutely a sense of pride for every Indian staying in India Wonderful. and abroad. Let's have Mr. Modi again in Sydney. Can we have him on again, please? नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलैंड, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन Peter Dutton, Assistant Foreign Minister Tim Watts, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित जब कहा जाता था कि भारत
जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलैंड, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the lands that we are meeting here. Ooh, that was something. That was really and truly something. Pradeep ji, wow. बिल्कुल। Wow. That is brilliant. Absolutely brilliant. You look at that crowd, I haven't seen, irrespective of whatever people might say about Jawaharlal Nehru, about everybody else, this guy is something else. He's a real rock star. That's what he is. I mean, every Indian would be proud of what Yes. we've seen today. I mean, What Mr. Modi's done.
Amazing, absolutely amazing, absolutely amazing, absolutely amazing. This is really and truly amazing what is going on right now. It is absolutely fantastic what Mr. Narendra Modi has done in Sydney. I mean, I don't even know where to begin. So how can anybody criticize him for this? I mean, in international scenario, we've got very few leaders who Yes. the whole world sees continuously. One is the Chinese premier, one is Mr. Putin, and third is Narendra Modi ji. You can't deny the fact that is, and the third term, it probably supersedes everybody. Yep. And the way things are going, I don't see anything else happening over here. I mean, This is Exactly. absolutely fantastic. At the moment with us, we have a very, very important guest indeed, Mr. Kaisar Khalid. Kaisar Khalid Saab is an IPS officer, very distinguished, but he has, received various honors as a police officer and so on and so forth. But I think the most important achievement is that he is the recipient of the Maharashtra State Urdu Sahitya Academy Award, which is fantastic. Kaisar Saab, namaskar. Namaskar. Can you hear me? I can hear you, sir. I can also see you. Except the only thing is, I don't know whether you can see me. Can you see me? Yeah, I'm able to see you. Wonderful, wonderful. So it'll be nice if you turn your eyes this way instead of that way. But anyway, it's up to you. You are a very handsome man, so whichever way you look, you're going to remain nice looking. That's wonderful. Thank you. ये कैसर खालिद साहब ये बताएं, आप तो आईपीएस ऑफिसर साहब, आप तो पुलिस वाले हैं, और पुलिस वाले शायर भी हैं, और तो और छोड़िए, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का मतलब उर्दू अवार्ड आपको मिला है. ये हाउ डिड दैट कम अबाउट, वो जरा बताएं सर प्लीज. भाई मैं बिगड़ा हुआ ऑफिसर हूँ, मैं ज़रा सेंसिटिव किस्म का आदमी हूँ, तो मैं लोगों के प्रॉब्लम को जब देखता हूँ तो एक लेवल तो ये है कि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. दूसरा लेवल पे मैं ये सोचता हूँ कि समाज किधर जा रहा है, इंसान किधर जा रहा है, हम लोग किधर जा रहे हैं, वी टुगेदर एज अ सोसाइटी हम कितना डिसफंक्शनलिटी से गुजर रहे हैं. और जब आप उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करेंगे, हालात पे रिफ्लेक्ट करेंगे और जो ज़माने की ऊंच नीच है उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो कुछ बहुत सारे विचार मन में आते हैं. प्रॉब्लम क्या है कि सेंसिटिव आदमी जहाँ है उस जगह पे तो रियलिटी के धरातल पे है, लेकिन जहाँ होना चाहिए वो उसकी एम्बिशन, उसकी एस्पिरेशन, उसका ड्रीम रहता है वो. और ये जो गैप है, इसी गैप को बहुत बार लिख करके या आप कोई भी क्रिएटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन कैसर खालिद साहब, आप तो यू आर इन अ काइंड ऑफ जॉब, उसमें ज्यादा सेंसिटिव होना तो मतलब आपके खुद के जहन के लिए ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता. मतलब you are you sure you're all right, because the kind of pressures that you have to undergo, it would be very difficult for you to maintain your balance. खालिद साहब, मुश्किल तो है, लेकिन आई एम ऑल्सो ए काउंसलर. मेरे 250 से ज्यादा वीडियोस होंगे. we have seen those. जी, करियर काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग. सो आई थिंक कि अब थोड़ा तकलीफ तो है. व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. सेंसिटिव आदमी को मुश्किल होता है. चमड़ी मोटी हो तो बहुत आराम से जिंदगी गुजरती है, लेकिन फिर समाज बदलता नहीं है. And you cannot come up with ideas, you cannot come up with innovations, unless you feel for people कि ये बदलना चाहिए, हालात बदलने चाहिए, ये सिचुएशन बदलनी चाहिए. I don't think any real change will begin. And you're a motivational speaker as well. And you tell young people that they should go towards education, they should do whatever is good for the society, and so on and so forth. And what I love about you is the fact that you tell people, hey, listen, we are the citizens of a free country. We have rights, but we also have responsibilities. And you showed your responsibilities, especially during COVID. COVID के वक्त जो आपने प्लाज्मा प्रोवाइड किया, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए, my God, how did you find the time to do all this? Could you tell us that, please? कैसर साहब? In addition to these two things, हम लोग 30,000 फूड पैकेट रोज लोगों को प्रोवाइड भी कर रहे थे. जी, 30,000 फूड पैकेट इसके अलावा. क्या बात है, वंडरफुल. और क्या हुआ कि आई वर्क इन मुंबई सिटी फॉर लॉन्ग टाइम. यस. और जिस एरिया में मैं एडिशनल कमिश्नर था, ईस्ट रीजन इज एक्चुअली द हब ऑफ द सोशियो इकोनॉमिकली मोस्ट वीक और फ्रेजाइल ग्रुप ऑफ पीपल. और लेबर थे, काम करने वाले लोग थे, दुकानें बंद हो गई, होटल बंद हो गए, सब चीज़ें बंद हो गई. और जो थोड़ा बहुत राशन उनके पास हुआ करता था
वो भी खत्म होने लगा, तो क्या करेंगे लोग? अच्छा, ट्रेनें बंद हैं, बसेस बंद हैं, बाहर भी नहीं जा सकते लोग। तो भी थॉट कि यार वी मस्ट डू समथिंग, मतलब लैमेंट करने से और दुख एक्सप्रेस करने से कुछ नहीं होता है, वी शुड डू समथिंग। सो थोड़ा क्रेडिबिलिटी में मेरी थी, तो फिर लोगों से मैंने कहा कि क्या करना चाहिए। देन केम आउट विद दिस आइडिया कि हम दो चीजें करेंगे, एक तो हम खाना प्रोवाइड करेंगे और खाना हम उनके डोर स्टेप तक पहुंचाएंगे, ना कि लोगों को हम बुलाएंगे रोड पे या किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जो उनके कोविड नॉर्म्स के वो खिलाफ होता। तो बड़ा इनोवेटिव सा एक आइडिया आया है कि हम लोकल जो केबल नेटवर्क के लोग हैं, हमने उनसे टाई अप किया और वो घर घर जानते थे, उनको ये मालूम था घर घर में कितने लोग रहते हैं, तो उनके पास स्कूटी या छोटा स्कूटर होता था, मोटरसाइकिल होती थी, तो 2 लोगों का ग्रुप, 50 आदमी की जिम्मेदारी, घर पहुंच खाना, एक कंट्रोल रूम जो कॉल करके पूछेगा खाना मिल गया, व्हाट इज द क्वालिटी। वी पुट अप सेटल किचन इन दैट एरिया चेंबूर में, और we negotiated with many suppliers, so we got very good rates for milk, for vegetables, for fruits, and lot of other people. I mean, I'm grateful to so many people who came out and helped us in providing these things. तो basically क्या है कि बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग घर पे भी बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है कि वो जैसे अहमद फराज ने कहा था ना कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। क्या बात तो है, क्या बात है कि रात का क्या हम गिला करें, अपने हिस्से की कोई लाइट हम जलाएं ना। जी। So that was what we did. So a lot of people must have come, to help you in this. Quite a few people must have contributed and all that. So who are these people? Lot of foundations, lot of NGOs, lot of groups. I should say many people came out from the CSR activities, and many people like 10-20 तो ऐसे लोग थे जो बड़े बिग शॉट थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन बहुत उन्होंने मदद की। और मतलब रिलीजियस लोग, बिजनेस के लोग, सोसाइटी में कॉन्शियस लोग, यहाँ से बाहर से, I just can't मतलब express enough gratitude for them. हम तो क्या थे, we were just aggregators, लेकिन ये है कि sources were coming, and we are all so proud of you, sir. We are all so proud of you. Khalid साहब, the community needs, you have been doing बहुत सारे community services, very good community services you have been doing. The whole world knows it, especially Mumbai. The community as on today, requires good leadership skills, leadership to guide them, to motivate them, because समाज कुछ न misguided on leadership से जाके बहुत बहक जाते हैं। जैसे कहा कि अग्निवीर में जाना नहीं है बच्चों को, तो पूरे कौम के बच्चे वो अग्निवीर स्कीम को बॉयकॉट कर लेते हैं। वैक्सीनेशन नहीं लेना है तो मिसगाइडेड लोग बोलते हैं कि मत लो, तो पीपल बिलीव इट, एंड दिस कम्युनिटी को बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस है। तो इस लीडरशिप क्राइसिस को कैसे पूरे करेंगे सर खालिद साहब? मैं समझता हूं कि लीडरशिप क्राइसिस, Please go ahead, sir. Go ahead. We can see you. We can hear you. Yes. Go ahead. देख, लीडरशिप कई लेवल पे होती है। एक लेवल जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल या बिजनेस या इस किस्म का, लेकिन मुझे लगता है सोशल लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल लीडरशिप ये नहीं कि हम बहुत बड़ा काम कर लें, जो हम कर सकते हैं वो करें। हम अगर सफाई कर सकते हैं तो हम सफाई करें, हम पढ़ा सकते हैं तो हम पढ़ाएं, हम किसी को बीमार को मदद कर सकते हैं तो वो करें। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे लीडरशिप जब क्रिएट होगी तो इनका जो हार्मोनाइज नेटवर्क होगा उसके चलते बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है लीडरशिप के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो एजुकेशन विद इनलाइटमेंट, कि सिर्फ पढ़ाई, लिटरेसी नहीं, डिग्री नहीं, एजुकेशन। पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ओपन योर माइंड एंड मेक यू रियलाइज कि यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सोसाइटी वेयर यू एग्जिस्ट, फॉर द कंट्री वेयर यू लिव। ये नहीं कि सिर्फ हम लेते रहें। हमने इतना कुछ लिया हुआ है, हैव यू एवर थॉट कि हम कुछ वापस करें? हम बैंक से लोन लेते तो इंटरेस्ट पहले जमा करते हैं, प्रिंसिपल बाद में पे करते हैं। अरे भाई, सोसाइटी से इतना कुछ हमने लिया हुआ है, वी आर एजुकेटेड, वी हैव अ गुड लाइफ, तो हम क्या वापस कर रहे हैं? और सोसाइटी डज नॉट मीन माई ओन चिल्ड्रन और माई ओन किथ एंड किन, इट ऑल्सो मीन्स कि मेरे आसपास के वो लोग जो उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, जो उतने रिसोर्सफुल नहीं है। तो whatever way we can contribute, we should contribute. Wonderful, sir. Any kind of leadership that you are inspired by and which would tell पूरे समाज की देखो ये leadership,
हम किसी भी बड़े लीडर को पूछते हैं तो उनका कहना है कि कभी कभी हम अंबेडकर जी से इंस्पायर हुए, कभी कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी से लीडरशिप स्किल्स लिए। तो अलग अलग एनी पर्टिकुलर लीडरशिप का स्टाइल स्किल जो आपको इंस्पायर किया, आप समझते कि नौजवान जो यूथ है उनको इंस्पायर करेगा? देखिए, यूथ को जो भी एक ड्रीम दे सकता है, एक सपना दे सकता है, एक एम्बिशन दे सकता है, वो लीडरशिप सक्सेसफुल लीडरशिप है। फॉर पीपल लाइक मी हु आर फ्रॉम विलेजेस, जिनको मालूम नहीं था जिंदगी में क्या करना चाहिए, आई थिंक द हमदर्द स्टडी सर्कल इन दिल्ली व्हिच वाज फाउंडेड बाय हकीम अब्दुल हमीद साहब एंड एक्स वीसी ऑफ अलीगढ़ सैयद हामिद साहब, it had provided us education, it made us the provision for our stay, and I think around more than 300 officers have come out from that institute. That was one institute which provided us education leadership. That is one example. I am seeing a lot of other examples in different other fields. So मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम एजुकेशन पे करने की ज़रूरत है, और एजुकेशन के साथ वो एक हार्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें कि ये फील हो कि हम ले रहे हैं सोसाइटी से तो हमको वापस भी करना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, आप ये बताएं कि यू हैव सर्व्ड इन वेरियस एरियाज। जलगांव में आपने सर्व किया है, गढ़चिरौली में, सिंधुदुर्ग में, places like that. Which was the most challenging job that you had? Was it Gadchiroli? Was it Jalgaon, Sindhudurg? Where? Gadchiroli was hotbed of Naxalism, and the area where I was 120 kilometers away from the district headquarters itself. Yes. मैं जिस मकान में हम रहते थे वो कमरा मैंने जाके खुद बनवाया है वहाँ पे, and I've seen encounters, I've seen firing, I've seen grenade blast, the IEDs. So Gadchiroli was a different kind of challenge that कि आप निकले तो फिर आप वापस कब आइएगा और कैसे आइएगा, we do not know. But that helped me understand what is the psyche of the last person. आप उसके साथ रहते हैं, आप बराबरी के साथ रहते हैं, आपकी और उसकी जान बराबर है. Unless you have complete faith and trust and all of you observe the discipline which is necessary to operate in those areas, I think uske siwa you cannot be successful. So that taught us a lot of things. Other places also taught us a lot of things. In fact, Mumbai itself, which is a mega city, जिसमें एक बड़ा पोर्शन जो है स्लम का है, तो पुलिसिंग अलग है. I have managed the traffic of the city also. Yes, 14,000 strong तो इसका local armed force है. That was also headed by me. Then I have worked as Deputy Commissioner Port, and I have seen ship collisions, I have seen Somalian pirates, and I have seen a lot of other issues. So there's great learning, in fact, in every experience that you have. और मैं समझता हूँ कि आदमी को अपना दिमाग ज़हन खोल के रखना चाहिए, so that he learns. So when do we get to read a no holds barred book detailing all your experiences where you don't have to hide anything, because this will be a real bestseller. अगर बशर्ते कि आप सारे सर्विस रूल्स को वायलेट करते हुए ये किताब लिखें, सर, या आप साल रुक जाएं और आप सुपर एनुएट हो जाएं. Just 10 years now. सर, एक और चीज है जो आपके नाम से जुड़ी है, वो है पासबान अदब. उसके बारे में जरा बताएं प्लीज. Our viewers would like to know. Like anybody who has got a reputation in the society, तो वो लोग बुलाते हैं बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम में और लिटरेरी प्रोग्राम में. अच्छा, मैं हिंदी उर्दू ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ आदमी हूँ, तो जो मैं पढ़ के आया था और जो मैं वहाँ जाके सुनता था उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था. तो अब आप दूसरे को क्या आप क्रिटिसाइज करेंगे? यू हैव टू ड्रॉ ए बिगर लाइन. मैंने हमेशा इस चीज़ को समझा है कि रादर देन टेलिंग कि आपकी लाइन छोटी, आप बड़ी लाइन बनाइए. आप वो रोल मॉडल बना के लाइए, या आप वो एग्जाम्पल सेट कर दीजिए जिसको लोग अपना सकें. सो वी स्टार्टेड दिस लिटरेरी मूवमेंट कि अच्छे लिखने वाले, अच्छे सुनने वाले एक प्लेटफॉर्म पे आए. और जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है लिटरेरी इवेंट्स की, कि लिटरेरी इवेंट या तो नाच गाने का हो गया, या पॉलिटिकल नारेबाजी का हो गया, या एक छिछोरी इश्क का चीज हो गया, या ऐसा वीर रस है कि जिसमें कि सामने वाला जो लाइन बैठा हुआ है, मुझे बहुत बार लगता है कि अभी तलवार इसी पे चल जाएगी, तो बाकी लोग तो बाद में आएंगे. दैट इज नॉट व्हाट आवर लिटरेचर वाज. लिटरेचर इज यू लुक इनसाइड. आप अंदर झांकिए, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो जज्बे हैं, आप जैसा महसूस करते हैं, आप जो कनेक्ट बनाते हैं लोगों से,
और उस आप बीती को जग बीती बना दीजिए। लिटरेचर दूसरे को गाली देने का नाम नहीं है। सो वी स्टार्टेड पासवान अदब मुंबई एंड जश्न अदब दिल्ली, और वहां पे भी ट्राइड कि हम अच्छे लोगों को बुलाएं पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए, और अच्छे लोग सुनने के लिए आए। सो वी स्टार्टेड दिस कंसेप्ट ऑफ जश्न इन दिल्ली, और उसके बाद बहुत लोगों ने फिर उस जश्न को आगे बढ़ाया। सो मुंबई ऑल्सो एंड दिल्ली ऑल्सो, एंड देन वी। और मराठी में भी आपने शुरू किया सर? भाई ये तो अब तो मैं मराठी मानुस हो गया हूँ यहाँ पे 26 साल में, तो इस मिट्टी का भी कर्ज मेरे ऊपर है, और मैं समझता हूँ कि जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी है उसमें इस लैंग्वेज का बड़ा कर्ज है, और ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और जब हमने इसके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, देन वी रियलाइज कि मराठी का जो लिटरेचर है वो बड़ा अभिजात जिसको हम मराठी में कहते हैं, इज अ वेरी क्वालिटी क्लास लिटरेचर। उसमें बहुत अच्छा लोग पोएट्री लिखते हैं, गजलें लिखते हैं, छंद लिखते हैं, एंड और क्या होता है सर्टेन एक्सप्रेशंस कुछ आप बाहर नहीं महसूस करेंगे। जैसे एक राइटर ने लिखा है कि जो लोकल ट्रेन में आदमी सफर करता है और वो थक जाता है, उसकी जिंदगी इसमें निकल जाती है, बच्चे को वो हॉरिजॉन्टली बढ़ते हुए देखता है, वर्टिकली बढ़ते हुए नहीं देखता है जी। अब वो एक मर्म ऐसा है, एक दर्द ऐसा है कि जिसको जो है मराठी में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। So lot of good things in Marathi also. So you started something called Kavyanjali in Marathi. Yeah, तो ये yeah. Kavyanjali sir, is it an annual event? Is it a quarterly event? Or It is an annual event. One event in Hindi, one event in Marathi, one event in Urdu. माशाल्लाह, Annually. क्या बात And है, we bring the music part, the folk songs, like Kabir song अभी हमने organize किया था. Then in Hindi we had Shada Sinha ji performing on Hindi folk. एंड देन मौसम कैसे चलता है, उससे कैसे भावनाएं निर्मित होती हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, यू नो दैट कनेक्ट यू कैन फील। आई मीन आई एम जस्ट कोटिंग वन परफॉर्मर, बट एनीबॉडी। एक हिंदी का खालिद साहब ये बताएं, आर यू मैरिड सर? डू यू हैव अ फैमिली? यस यस, You have children? lovely daughters, yeah, 2 daughters. You have 2 daughters. So have you seen them grow horizontally or vertically? Initially नो शुरू में तो वक्त कम देता था, लेकिन नहीं, आपने अभी बताया ना कि जो मुंबई का जो है बेचारा, वो लोकल ट्रेन में उसकी जिंदगी इतनी बीत जाती है, ही ओनली सीज हिज चिल्ड्रन ग्रो अप हॉरिजॉन्टली, सोते हुए ही देखता है उनको और सोते हुए छोड़ देता है। तो जितनी आप एक्टिविटीज करते हैं, मुझे तो लगता है आप घर में रहते नहीं होंगे। नहीं, फॉर्चुनेटली मेरे बच्चों ने मुझे हमेशा लाइन पे लाके रखा हुआ है, एंड दे वुड क्वेश्चन मी एंड दे वुड क्रिटिसाइज मी। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो लिटरेचर की स्टूडेंट है, तो क्या बात है, वंडरफुल। उसको तो चीजें जो हैं ऐसे ही आती हैं। फैंटास्टिक। तो एंड देन माय वाइफ हैज आल्सो केप्ट मी ग्राउंडेड, तो मैं जितना भी उड़ूं मैं हूं जमीन पे। और खालिद साहब, you know your experience, literature हो गए, poetry हो गए, आप you know music हो गए, and your professional work, है ना, इस सब experiences से आप now the youth के लिए क्या message, the ultimate purpose of life, what, because you are a poet also on your own right, तो कोई 2 पंक्तियां में अपने ultimate purpose of life भी समझा दे। जी सुन लीजिए, मेरा ही शेर है कि ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या। Agreed कि this is an age of greed and too many desires. Yes. Nevertheless, ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त। So you've written 3 books, but I notice you haven't written anything after 2016. 2016 के बाद आपकी कोई किताब नहीं आई है, तो अगली किताब कब आने वाली है सर? वो किताब प्रेस में, लेकिन वो आई रिमेम्बर नुसरत फतेह अली खान साहब कि उनसे पूछा गया कि जो अभी जनरेशन आ रही है म्यूजिक में, उनको आपको क्या कहना है, व्हाट इज योर एडवाइस। तो उन्होंने कहा था कि मेरा एडवाइस यही है कि मैं जहाँ तक इसको लेके आया हूँ, मुमकिन हो तो इसको इससे आगे लेके जाओ, और अगर वो ना कर सको तो कम से कम इस लेवल पे इसको मेंटेन करो। क्या बात है। तो क्या होता है कि वंस यू सेट अ स्टैंडर्ड, उसके बाद बहुत मुश्किल होती है फिर उस लेवल को मेंटेन करना। तो सर एट द मोमेंट यू आर कमिश्नर रेलवेज, राइट? नाउ आई एम द हेड ऑफ transport of Maharashtra Police, IG. Okay, you are now head of transport, Maharashtra Police. Okay. Yeah. Wonderful. And where do you go from here, sir? अब तो I should be getting my next rank very soon, so I should become an additional DG or
what you call as principal secretary in the state government and then DG. तो That's मतलब मैंने बोला कि 10 साल बच गए तो ज्यादा बचा नहीं है That's ना, wonderful. बेल्ट से उतरने का वक्त आ रहा है. So we'll have an additional DG or a principal secretary who is also a poet, who's also one of the most socially conscious individuals we've ever met, and the one man who actually walks the talk, who actually does what he actually says everybody else must do. क्योंकि साहब लेक्चर तो हर एक कोई दे सकता है, आपने असल में लोगों का काम किया है. तो क्या जिन लोगों की आपने उस वक्त मदद की थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे आप थैंक यू लेने को जाएं, डू यू स्टिल कीप इन टच टू फाइंड आउट हाउ दे आर डूइंग एंड सो ऑन कोविड के वक्त? भाई मैंने पता नहीं, मैं बिगड़ा हुआ ऑफिसर हूँ तो मेरा टच टूटता नहीं है लोगों से. क्या बात है. और जैसे अभी मैं सैटरडे को आई वाज इन अ सिटी कॉल्ड अमरावती व्हिच इज अराउंड 700 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई. यस. And my purpose of visit, in addition to my official work, was also to speak to students और उनका काउंसलिंग, करियर कैसे अपना है, and also to speak with parents. जी. बच्चे को how do you bring up? So वो मेरा जो टच है वो बना रहता है और मुझे इस बात का कोई एतराज़ नहीं है कि मैं किसी स्लम में चले जाऊँ, किसी ऐसे मोहल्ले में चले जाऊँ जहाँ मुझे ज़मीन पे बैठना पड़े या मुझे पत्तल में खाना पड़े या मुझे लोगों के साथ मिलना जुलना पड़े. आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट कि लोग आपको प्यार करते हैं और आपको दुआएं देते हैं और अपना समझते हैं आपको, आपसे अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं. मुझे लगता है ये जो इंडियन पुलिस में ना सर्विस वाला पार्ट है, दैट शुड नेवर बी फॉरगेटन, फॉर दैट मैटर एनी सर्विस. Fantastic, absolutely fantastic. Kaza Khalid Saab, really and truly proud to have made your acquaintance, even though it is digitally. Maybe one of these days we'll meet you personally. That will be a great honor. But we're all so proud of you. Thank you very much. Thank you very much. Namaskar. Namaskar. Bye. Thank you. That was wonderful. Fantastic. That's A poet, a man who walks the talk. administrator, Wonderful. a policeman. Absolutely wonderful. Right, that's just about it for this show tonight. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, वंदे मातरम. मुझे मालूम नहीं कि आज कोई कमेंट्स है कि नहीं है. There aren't any comments. Are there any comments? Do we have any comments today? I don't think so. One. No. Okay, fine. So we'll take them tomorrow. That is just about it for the show today. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.